हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। पिछले हफ्ते का जो वाकया था उसने पूरे मुल्क को it's been quite emotional, it's been quite angering. The incident itself, unfortunately, पाकिस्तान में अब तो स्टैट्स बन गए जितने ही इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसका जो रिस्पांस भी रहा है वो भी क्वाइट सैडनिंग रहा है। और इसी वजह से आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट। मैं सिर्फ एक ट्रिगर वार्निंग सबको देना चाहता हूँ कि काफ़ी डिस्कशन ऐसे होंगे जो शायद काफ़ी लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो, तो प्लीज़ take care of yourself as well and then decide how you want to consume this or hear this. मैं चाह रहा था कि हम रेप कल्चर के बारे में बात करें कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से परमिएट होता है और उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो I wanted a panel and I could not have wished for a better panel. I'll let all of them introduce themselves to you and then take the conversation forward. Hamna, let's start with you. Hi, Shazad. I'm Hamna Zubair. I'm a journalist and writer, former culture editor at Dawn. Yeah, I'm happy to be here. Wish it was under better circumstances, obviously. Hi, my name is Manal. I write for Katakat, which is an online publication, and we cover a lot of cultural topics, especially through the lens of gender. I'm also a professor at Zabist. I teach journalism. Hello everyone, I'm Kurat Mirza and I am a political and social activist. I'm associated with Women's Action Forum and one of the member of Aurit March 2018, 19 and 20. So, hi everybody, my name is Nayab Jan and I'm a women's rights activist and I also help run an organization. It's basically focused on women's economic empowerment and sometimes I do a little bit of like digital journalism. Hi, my name is Tuba और मेरा ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से और वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। मैं खुद को एक लेफ्ट का बाएं बाजू का सियासी कारकुन मानती हूँ और इसके साथ साथ मैं औरत आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की ऑर्गेनाइजर भी पिछले कुछ सालों से रह चुकी हूँ। तो आज मैं चाह रहा था डिस्कशन रेप कल्चर के अराउंड हो एंड थोड़ा ऑफलाइन हमना और मैं बात कर रहे थे, तो आई जस्ट टेक दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. हमना, you wanted to break it down into what we should potentially talk about. Yeah, and I think Manal ने भी कहा था कि we should start maybe with a discussion on what is rape culture, ताकि हम identify कर सकें कि ये हमारे घरों में है कि नहीं. Obviously we know कि society में तो है, right? And very simply put, my understanding of rape culture is a culture which through laws, through norms, through behaviors and actions, makes women and other minority groups, but in this generally, but in this case we're talking about women and also children, which views women and children as being lesser than men, right? By not being important members of society, by dehumanizing them in various ways, which results in their objectification. Okay? It results in their dehumanization, and it's not necessary कि हर एक बंदा किसी औरत को rape करे for rape culture to exist, is what I'm trying to say, right? Rape culture is when you don't take women, their concerns, their safety, their bodies seriously. जब आप इनको dehumanize करते हो through the legal system, आप उनको कम मतलब के standing पे लाते हो, all of these things in my mind are rape culture. A society where women are objectified, dehumanized and seen as less than. ठीक है? And I think when we take the conversation forward, we can also identify exactly what feeds into this rape culture, what increases its prevalence in society. I think that's a really important thing to touch on as well. But just as a very basic definition, I wanted to say this, and maybe someone can add to this basic definition and we can improve our understanding of it. I mean, I think बिल्कुल I think it's important कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो कि हम शायद इग्नोर करते हैं या उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एंड वो शायद कॉन्वर्जेशंस का अब हमारी एक डेली प्रैक्टिस बन जानी चाहिए, are things like something as simple as, well, it's not simple actually, but for most people it is, rape jokes, for example. A few years ago, it was something very common. हर वक्त आप we would use the word rape very like रेगुलरली कि हर चीज में मजाक के अंदर या कोई क्रिकेट मैच देखते हुए या कुछ भी करते हुए बोलते थे यार उसने तो उसका रेप कर दिया, पाकिस्तान ने तो रेप कर दिया इंडिया का,
ये बहुत कॉमन होती थी चीज, एंड जितनी अवेयरनेस अब हो गई है इसके बारे में कि यू डोंट मेक रेप जोक्स फॉर एग्जांपल, बिकॉज आप ट्रिगर कर रहे हो, आप डिह्यूमनाइज कर रहे हो, आप विक्टिम को आइसोलेट कर रहे हो, आप उनको शायद और वो फील करा रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो हमारा डेली वर्नाक्यूलर है, हमारी जो डे टू डे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में बातें आती हैं, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि विच वी कैन स्टार्ट डूइंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, इसके ये कॉन्वर्जेशन हम लोग आपस में, अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और जो भी पोजीशंस ऑफ पावर में है, पोजीशंस ऑफ पावर आई मीन के अब मैं एज एन एडिटर, मेरी टीम है, मैं स्टूडेंट्स हैं 60, आई हैव 60 किड्स आई टीच। जब आप ऐसी जगहों पे आप हैं जहाँ पे आप अपनी बात एम्पलीफाई कर सकते हैं, आप अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लें, और आप देखें कि आप इस कॉन्वर्जेशन को किस तरीके से आप सेंसिटिवली यू कैन गेट इट रोलिंग, कि अब आप इसको कॉमनली बात करना शुरू कर दें कि भाई देखें ये जो चीजें हैं जो आप मजाक में बोल रहे हैं, या आप जो मजाक में ही बोल रहे होते हैं आपस में डे टू डे के अंदर, ये सब कहीं जा रही हैं, ये हवा में नहीं हो रही हैं बातें। सो ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग deposited in our subconscious mind somewhere, is getting deposited in the policies that we make legal. हमारा जो मीडिया कंटेंट है, जो हम शोज बनाते हैं, अब ये जो ड्रामे बन रहे हैं वो भी तो हमारे जैसे नॉर्मल लोग बनाते हैं। अब उनकी सोच अगर जैसी सोच होगी वैसा ड्रामा लिखेंगे, जाहिर है, फिर वो टीवी पे लोग देखेंगे, फिर वो और लोग देखेंगे, फिर वो फिल्टर डाउन होगा, तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है, फिर वो एटीट्यूड फिल्टर होता है, और फिर trickles down to like the common man. सो आई फील लाइक कि एक जगह जहाँ पे रेप कल्चर बहुत जरूरी है एड्रेस करना, इज के डे टू डे बातों के अंदर जो हम लोग मिसोजिनी या हम लोग क्या कहते हैं perpetuate कर रहे हैं, that needs to be, I feel personally, it needs to be identified, and I think it does, it seems like a small thing, but it really adds up. So I think I do agree with Hamna and what Manal are saying, and just to add to what they are saying, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया जाए, ट्रिबलाइज करने की कोशिश की जाए, औरत के खिलाफ दुश्मनी का जो एक कॉन्सेप्ट है, मिसोजिनी जो है उसको नॉर्मलाइज कर दी जाए थ्रू जोक्स के थ्रू, या जो हमारे सोशल एटीट्यूड्स हैं, चाहे उसकी रिफ्लेक्शन जो है सोसाइटी में मीडिया की तरफ से जारी हो या आम लोगों की तरफ जारी हो। तो मेरे ख्याल में इसकी हालिया एग्जांपल अगर आपने देखी हो तो इसी मोटरवे हाईवे के मोटरवे इंसिडेंट जो हुआ है, उसमें आप देखिए जो CCPO का स्टेटमेंट आया है, वो बेसिकली एक रेप अपॉलोजिस्ट का ही बयान हो सकता है, जिसमें वो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सारी सूरत हाल होती हैं जो कि नॉर्मलाइज करी होती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट जो सिंथी बुनियादों पर होता है। और अगर इसको मजीद जांचने की कोशिश करें और अपने कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, तो सोशल मीडिया देख लीजिए, जिस किस्म की मिसोजिनी का इजहार किया जाता है ओवरऑल सिंथी बुनियादों पर, वो आपको एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि हमारे माशरे में रेप कल्चर कितना फैलता जा रहा है और कितना नॉर्मलाइज हो गया है रेप के बारे में, अब्यूज के बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में लोगों को बात करना, मीम्स बनती हुई हमें नजर आती हैं। और सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, इवन हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी भी अगर आप मिसाल देखें तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सहूलतकार बनता चला जा रहा है, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ सारा का सारा जो है वो विक्टिम के ऊपर हमें कहीं ना कहीं नजर आता है, सोशल फ्रेमवर्क में भी, जुडिशल फ्रेमवर्क में भी। सो मुझे लगता है कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज और रेप के लिए, दिस हैज बिकम अ कल्चर हियर इन आवर सोसाइटी। और जाहिर सी बात है और भी साथी उसके ऊपर जरूर रोशनी डालेंगे, बट दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग के किस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया। इट्स वेरी इजी कि आप किसी के साथ भी किसी की जिनसी ज्यादती या चाइल्ड अब्यूज, उसको आप देखें किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता जा रहा है, और उसके बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन हैं जिसमें 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 इसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आप देख लीजिए कि हमारी जो मजहबी पैरोकार हैं या जो फैनेटिक्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। कभी मजहब को सहारा बनाया जाता है, कभी
तभी मर्दानगी का जो मस्कुलिनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह सपोर्ट किया जाता है? मैं ऐड करना चाह रही थी, हमना ने जो बात की वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट लगी। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली रेप कल्चर सिंपली पुट एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर औरत को इंसान नहीं समझा जाता, और जो भी माशरे के अंदर जो भी पिसे हुए तबके हैं, ऑफ कोर्स ये रेप कल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं जो डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं, जैसे तबका और मजहब और एटसेट्रा, इंटरसेक्शनैलिटी है। तो ये है कि उसको यानी इंसान नहीं समझा जाता, उसकी रजामंदी, उसका जो कंसेंट है वो मैटर नहीं करता। बट आई वांट टू गो बैक टू समथिंग दैट हमना सेड, व्हिच इज के रेप कल्चर जो है उसका वाहिद जो आउटकम है वो सिर्फ रेप नहीं है। हमें इसको एज स्टेजेस, वो we've all seen that pyramid, I always refer to that pyramid, जिसके अंदर एटीट्यूड्स, बिलीव्स, डिफरेंट चीजें आती हैं, स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसका आखिरी जो स्टेप है वो अब्यूज या असॉल्ट होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, लोगों ने यहाँ पर बात की जोक्स वगैरह ये वो, बट मैं इसमें ऐड करते हुए अगर आप माशरे का कोई भी इदारा देखें, कोई भी इंस्टीट्यूशन देखें, ख्वाह वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, हमारे घर, हमारे तालीमी इंस्टीट्यूशंस, ऐसे सारे जो इदारे हैं जो एक इंसान को सोशलाइज करते हैं, उसके ख्यालात को बनाते हैं, वहाँ पर इतनी कैजुअल तरीके से कुछ ऐसी बातें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में अक्सर यह बात की जाती है कि जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो अच्छी ख़वातीन नहीं हैं, वो बद किरदार हैं और वो डिजर्व करती हैं जो उनके साथ जो अंजाम होगा, एटसेट्रा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा इस तरह का बिहेवियर आ जाता है। स्टार्ट्स एट होम, और उसके बाद स्कूल में होता है, फिर मीडिया के अंदर जो स्टीरियोटाइप्स हैं, फिर बाकी हुकूमती रियासती इदारे, तो ये सारे एटीट्यूड्स रिप्रोड्यूस होते हैं। समथिंग एज कैजुअल एज स्ट्रीट हरासमेंट फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों के साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू एवरी एस्टिमेट, पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर औरत के साथ जो है वो किसी ना किसी मार्केट में, किसी गली में, किसी पार्क में किसी किस्म की हरासमेंट हुई है। और ये कितनी, आप इस ज़हनियत का अंदाजा लगाएं कि ये वही बात हुई ना कि उन मर्दों को ये लगता है कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा जो चल रहा है यहाँ पर, ये या तो बद किरदार है क्योंकि ये घर से निकली है, अगर इसके साथ कोई मर्द नहीं है तो दैट मीन्स कि इसका तो कोई आगा पीछा नहीं है। उसके बाद different types of things, and the fact that चलती फिरती किसी औरत को, ख्वाह उसने कुछ भी पहना हो, वो कुछ भी कर रही हो, कोई हाथ लगाता है या कैट कॉल करता है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी बालातरी, अपनी जिस्मानी बालातरी, अपनी सेक्सुअल बालातरी दिखाने के लिए, बालादस्ती दिखाने के लिए, यू जस्ट आप अगले बंदे को इंसान नहीं समझ रहे, और उस इंसान की रजामंदी, उसका कंसेंट आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। सो आई थिंक रेप कल्चर एक लर्न्ड बिहेवियर है जो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की सोशलाइजेशन से आता है, और इसको अनलर्न करने के लिए भी बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस और इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। आई थिंक प्रीटी मच सबने इस पे तो बिल्कुल बात कर दी कि रेप कल्चर होता क्या है और उसके हमें वो नजर कैसे आता है या रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होता है। और आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि पाकिस्तान की सूरत हाल में रेप कल्चर शायद इसी बात से वाज़ेह हो जाता है कि जब आप औरतों की और मर्दों की स्पेसेस डिफाइन कर देते हैं, आप ये बता देते हैं कि किसकी जगह कौन सी और किसकी जगह कौन सी है, and on the basis of that you create this segregation, the segregation which says a woman belongs in the home and a man belongs in the public. So I think वो जो segregation होती है, जिस तरह साथियों ने भी बात की, वो segregation एक तरह से खुद ही ये कह रही है कि मर्द को औरत से दूर रखना है क्योंकि मर्द ये कर सकता है। तो ये जो बेसिस है कि औरतें चार दीवारी के अंदर रहती हैं या औरतें पर्दे में ना हो तो ये होता है। आई थिंक इस सेग्रीगेशन का होना, इस पब्लिक और प्राइवेट की डिवाइड का होना अपनी जात में खुद ही रेप कल्चर है। यही इधर से ही रेप कल्चर निकलता है। और हमारे मुल्क के अंदर किसी भी कौमी रियासत के अंदर ये बड़ा
खुल के डिफाइन किया जाता है। किसी भी नेशन स्टेट की आप बात कर लें कि व्हाट इज एन आइडियल सिटीजन एंड व्हाट इज एन आइडियल मैन एंड वुमन, उसके मुताबिक आपके जो रोल्स हैं वो तय किए जाते हैं कि मर्द, जो आइडियल मर्द है, हमें पता है कि वो एक सिपाही होता है, वेलियंट सोल्जर होता है, वो सरहदों की हिफाजत करता है। जो औरत होती है वो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनको आगे, हमारी इकदार को आगे लेके जाती है। उन इकदार में ये बिल्कुल, अगर यहाँ पे बैठे हम किसी से भी सवाल करें या जनरली भी कि एक कौमी रियासत या हमारी रियासत के मुताबिक वो आइडियल औरत कौन है, तो वो शायद इन 5 औरतों में से कोई भी नहीं है, 4 औरतों में से कोई भी नहीं है। क्योंकि वो जो औरत होती है उसके कुछ खास रोल्स तय होते हैं। सो ये रेप कल्चर, जैसे इन्होंने बात की कि रेप कल्चर और उस रियासत के या उस मुल्क के या उस कल्चर को, उसको निभाने के लिए किरदार खानदान अदा करता है, क्योंकि खानदान वो बेसिक यूनिट होता है जिसमें हमें समझाया जाता है कि बेटा बाहर निकलोगी तो ऐसा हो जाएगा, इतने बजे निकलोगी तो वैसा हो जाएगा। ये जो बात आई थिंक सीसीपीओ ने की, ये बात कोई ऐसी बात नहीं है जो हम में से किसी ने सुनी ना हो, और ये अफसोस की बात है। इट इज सो कॉमन बिकॉज हमें वैसे ही पता है कि हमारा जो असल मकाम है, हमें बताया जाता है कि हमारा असल मकाम घर के अंदर है। उस मकाम से हम जब भी निकलते हैं तो हमारे जो जिस्म या जो हमारी जात होती है उसको हमारा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो अपनी जगह से हटी हुई है, वो जगह उसकी घर के अंदर थी। और इसी वजह से whenever you're out in a society like ours, ऐसे लगता है कि जैसे बाहर निकलना ही मर्दों को या सोसाइटी को, समाज को लगता है कि ये औरत बाहर निकली है तो इस पे तो बनता है, क्योंकि ये अपनी वो जगह छोड़ के आई है। सो आई थिंक दिस एड्स ऑन टू इट। जो सीसीपीओ साहब ने कहा वो तो आई मीन इट्स कंडेमेबल, बट इट्स समथिंग वी ऑल गो थ्रू ऑल आवर लाइव्स। हम किसी भी पुलिस वाले के पास चले जाएं, वो अकेले नहीं है। I think 90% of our country thinks like that, in our homes, outside our homes, and I think ये उसी और इसका सिर्फ इससे, और वही लोग ये भी कहेंगे कि जिसने रेप किया उसको फांसी दे दी जाए, वो ये भी कहेंगे। सो आई थिंक वो कोई भी जानते बूझते हुए जरूरी नहीं है कि वो ये समझता हो कि हाँ रेप तो होना चाहिए। इस तरह के वायलेंट नजरियात कुछ ही लोगों के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होती है इस चीज की कि औरत को ढका छुपा रहना चाहिए, जो सेक्सुअलाइजेशन होती है एक औरत के जिस्म की, मुसलसल उसकी जात की, उसकी कमोडिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, चाहे वो घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, या चाहे वो रियासत की तरफ से हो, या मीडिया की तरफ से हो, या फैशन इंडस्ट्री की तरफ से हो, ये सारी चीजें मिलके ही उसको आप कह सकते हैं परवान चढ़ाती हैं। It's not always the conservative who propagate rape culture. It's also the capitalists, it's also the corporate sector, which tells you that if you look a certain way, you'll get a job. जैसे Fair and Lovely पहले, आज से पहले रिश्ते दिलाती होती थी कि गोरे होंगे तो रिश्ते हो जाएंगे, अब वो कहते हैं गोरे होंगे तो नौकरी मिल जाएगी। So everything has to do with a woman's looks. So I think this objectification of women's bodies eventually leads to this kind of rape culture where we're not considered humans with an agency, we're not considered people with bodily autonomy, right to freedom of mobility and right to liberation. I think औरत की आज़ादी को एक गाली समझा जाता है। वो मादर पिदर आज़ाद, जिस समाज में गाली मादर पिदर आज़ाद हो, I think उसमें rape culture तो होगा। I just wanted to add something to what Tuba is saying. I agree with what you're saying. Of course, that's a very my question is that I know a lot of women, myself included, who've had experiences of sexual assault, and a lot of those experiences and a lot of those incidents happened in our homes. Yeah. So that's the thing. So when we talk about women stepping outside, and that's a huge obviously conversation to have, because a lot of the cases that have been public, जो कि जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, whether it's a body of a 5-year-old being found, और end में conversation आ जाती है बच्ची अकेली बाहर क्यों थी या ये औरत बाहर क्यों थी। But there are so many times जब आपके अपने चाचे, आपके अपने भाई, आपके अपने cousins घरों में, आपके कमरों में, दावत पे, ईद में, so many women who talk about कि आप जब नाउज़ुबिल्लाह आप हज करने जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है, there's so many women who have told me incidents of that they've been groped while performing hajj, because it goes undetected.
And or coming back to the personal and क्या कहते हैं public space thing that Tuba was talking about, मैं ये like I mean what I'm actually just putting forward is कि this is then it becomes like really confusing कि अच्छा अब फिर इस चीज को identify हम कैसे करें कि ये जो घर वाला topic है कि a lot of it is happening घर में, तो वहां पे तो dehumanization इतनी मतलब intrinsic है कि वो तो आपका you'll hear stories के बाप बेटी को रेप कर रहा है, भाई अपनी बहनों को कर रहा है. अभी एक स्टोरी थी some time ago कि 3 भाई थे who were you know जिसमें से एक की शादी हुई थी. I'm forgetting ये कहाँ हुआ था, but अपनी बहन को they were raping some young girl. So you know, so how do we have this conversation? I think yes, what Comrade Tuba has said, and Manal, I do agree with you कि जब rape की बात होती है तो it's not out there in public spaces only, in private spaces. Marital rape को आप कहाँ count करेंगे? So rape is not about only connected with your mobility, but with your agency. And जिस तरह हमना ने कहा था कि dehumanize किस तरह कर सकते हैं आप, तो I see rape is to overpower this other person's you know body and agency. तो rape is to me rape is all about power अगर आप देखें, और उसको आप different spaces पे आपको नजर आएगा. और अगर आप घर से बाहर की बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी मोबिलिटी जुड़ जाती है कि रात को कितने बजे घर से निकलना है और यू नो सारा कुछ. और अगर वो घर में है, अगर आप मैरिटल रेप की बात करें तो यू नो किस तरीके से जो पावर स्ट्रक्चर है, पावर डायनामिक्स है बिटवीन अ कपल आल्सो, वी आल्सो नीड टू सी कि पेट्रियार्की सिर्फ आपको किसी एक स्पेस पे नजर नहीं आ रही है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जुड़ी हुई है. तो पूरे वजूद के साथ हम लेके चल रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट स्पेसेस में हैं या पब्लिक स्पेसेस में हैं. उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसमें एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी पावर डायनेमिक्स को आप देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेप इज नॉट अबाउट प्लेजर, इट्स ऑल अबाउट पावर. किस तरह आप अपनी पावर दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, चाहे उस तबकाती हवाले से हो, चाहे मजहबी हवाले से हो, चाहे वो सिंफी हवाले से हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पावर डायनेमिक्स नजर आएंगे whenever you talk about rape and rape culture. I totally agree. और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि रेप जो है ना, it is about power, it's about humiliation, it's about control. ठीक है, because जब आप औरत को कम समझते हो या कम देखते हो, right, you automatically, a man will automatically feel a need to exert control. आप औरत को resource की तरह समझते हो कि बच्चा पैदा कर देगी, right, or you think of her as your izzat. So these are objects, you know, these are not human attributes. But ये control जो है, I want to make clear कि this is not only restricted to the act of rape itself. ठीक है? Now, why is rape in our society used so much as a tool to control women or to humiliate women? It's also because rape extends beyond the actual action of the rape, because जो stigma और जो shame associate हो जाता है victim के साथ after they have been raped, that is also a means of control, right? And that is also rape culture, that after a person has been raped, they are then blamed for the crime, जैसे हमारे ये CCPO ने किया था. They are blamed for the crime, then they are held responsible for the crime, then the crime will follow them wherever they will go, and it will be used as something to make their family seem ashamed, right? Or it will be used as something to label them as like a damaged woman. तो ये control और ये सब coercion जो होता है rape के साथ, the reason why we are so focused on rape and why it's such a important topic is because इसकी after effects जिंदगी भर के लिए होती हैं, right? It's that control element, that shame element, that desire to humiliate women. It continues throughout the rape victim's life, right? और जिन societies ने rape culture किसी हद तक eradicate किया है, they have not just made rape such a big crime that people don't rape. They have also addressed the stigma around being a rape victim or a rape survivor, right? Because rape culture is not just about the action, it is about what happens before and what happens after. And after jo hota hai, victims are not treated with compassion, as is very obvious with the public reaction to this rape, right? Victims are not given psychological treatment. Hamare yahan to victims ki proper rape kits or rape testing facilities bhi nahi hoti, right? So
this idea of rape as a tools of control, it exists from well before the rape and exists well be after the rape. So this is something maybe we want to discuss also, the after effects, and why we're actually fighting for this, because it's not like a one-off crime. It's a very traumatic incident that leaves its mark for forever. And the other thing I want to address, I think Tuba, you touched on it, ye hai the connection of rape with our culture of violence and toxic masculinity. Okay? Now, as you said, rape is not about, lust or about sexual passion or any of these things. It is about power. It is about control. It is about a person expressing their need for power and control through this bodily action, right? Through a violent action. और अगर आप देखें, in any culture where violence is normalized to a big extent, उसमें rape भी होगा, rampant. In any culture जहाँ पे आपकी toxic masculinity is normalized, वहाँ भी rape होगा. और इसका मतलब ये है कि toxic masculinity, what does toxic masculinity do? It makes people think कि अगर if you want to be a man, आपको domineering होना चाहिए, आपको aggressive होना चाहिए, आपको अपनी emotions aggressively दिखानी चाहिए, right? So this intermingling of toxic masculinity with a culture that celebrates violence, this also contributes to rape culture. And जैसे हम देखें, like even violent nationalism, like these things also contribute to rape culture. Where you a culture like ours, for example, that's always focused on the enemy, isko marna hai, like Indians ko ye karna hai, unko ye karna hai, which fetishizes violence, this will also lead to an increase in rape culture. And isko hum matlab ke hata nahi sakte rape culture se. We cannot exclude the conversation on violence in like mainstream violence. I wanted to add to what Hamna was saying, the rage, the violence, and the connection of violence with rape culture. You don't even need to be looking at a patriarchal society such as ours. If you look at, wanted to throw this in, कि football season जब होता है in the US or in Europe, so football season causes a spike in domestic violence cases and crimes against women. So basically, it's not just about a society like ours, but even relatively progressive societies, वहाँ पे भी यही हो रहा होता है कि वो आदमी जब angry होते हैं, right, which is, and sports and violence, so that those two things go hand in hand. So वहाँ पे भी violence glorify होती है, और उसका भी यही होता है, मतलब end में नतीजा को मैच जो हारता है कोई, और घर में औरतों के साथ मतलब मारपीट हो रही है, फिर रोड के ऊपर इस तरह के harassment और इस तरह की cases, catcalling, ये चीजें हो रही होती हैं. So yeah, I just wanted to throw that in with what I just think what Manal said about कि हर patriarchal society में होता है. I do believe that that's basically what it is, right? It has to do with women being considered properties. It's to do with the commodification of women's bodies, whether in like classical patriarchal settings like ours, or in like उस तरह की हम कह सकते हैं patriarchal जहाँ पे relatively more liberal आपके पास समाज होता है, आपके पास ज़्यादा, you have more individual rights, more individual freedoms, उस समाज में भी ये होता है. And I think then one thing that's left for us to perhaps think about is that it has to do with if we have right over our bodies or not. और एक ऐसे समाज में जिसमें मलकियत पे इतना फोकस होगा और औरत को भी मलकियत समझा जाता है, औरत भी मर्द की या समाज की या खानदान की निजी मलकियत है. तो वो जो मैं बात कर रही थी, it was basically what I was trying to say, and I think I couldn't get my point across, was that जब खानदान भी आपको अपनी मलकियत समझता है और रियासत भी अपनी मलकियत समझती है, तो जब कोई चीज मलकियत होती है, ऑब्जेक्ट्स की तो सब्जेक्टिविटी नहीं होती. सब्जेक्टिविटी तो इंसानों की समझी जाती है. तो अगर औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन और कमोडिफिकेशन हो रही है, उसको सामान समझा जा रहा है, उसको ऑन करने की चीज समझा जा रहा है, तो उसमें फिर उसकी मर्जी नहीं होती. इसीलिए मेरा जैसे मेरी मर्जी इतना कंटेस्टेड है कि हमें लगता है एक तो ये क्या बेगैरती है कि ये जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो बॉडी के साथ रिश्ता है वो बहुत परवेसिव है, बहुत परवर्टेड किस्म का एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो, और ये वही लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को फहश कहते हैं.
और मेरे ख्याल में फहाशी उन यहाँ पर है, क्योंकि जिस्म में तो हम सबको तख्लीक जिस्म में किया गया है ना. सो यू वेरी राइट कि ये वहीं से आती है आवाज जहाँ पे वो परवर्टर्स बैठे हुए और उनको जिस्म से ओरियानियत ही समझ में आती है. हाँ, और बॉडी औरत का बॉडीली ऑटोनॉमी होना, मतलब अगर हमें अपनी जिंदगियों पे अपने फैसलों पे इख्तियार मिलेगा तो क्या बच जाएगा. मेरा बाप या किसी भी ऐसी मिडिल क्लास लड़की का बाप नहीं चाहता कि वो अपनी क्लास से हट के शादी करे या अपनी जात से हट के शादी करे या अपने खानदान से हट के शादी करे. तो जो सारे ढांचे हैं वो तो तबाह हो जाएंगे ना अगर हमारे जिस्मों को इस तरह से कंट्रोल ना किया जाए. और उस कंट्रोल का एक तो ये वही जो बात हमना ने की कि एक तो रेप होता है और एक पे थ्रेट ऑफ रेप होता है कि हमें सिर्फ ये नहीं पता कि हमारा रेप हो जाता है, हमें हर वक्त एक डर भी है. हमें ये पता है कि अगर अभी नहीं हुआ तो हो सकता है. That is also rape culture where women continuously live in fear of rape. कि हमें ये पता है. ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पे किसी सुन्नी लड़की ने किसी शिया लड़के से शादी कर ली. There was a case of this British woman where her father got her raped. She was raped in presence of her father, and this is what life for women is. That when आपको समझा ही नहीं जाता कि जिस्म पे आपका इख्तियार है, जात पे, मर्जी पे कोई ऑटोनॉमी है, तो I mean this happens. then अगर वो तीन बच्चों के साथ औरत है और हम टीवी पे सुन रहे अकेली औरत, मतलब 3 बच्चों के साथ भी कभी कोई अकेला हुआ है? 3 लोग हैं और अकेली भी है तो मतलब उसमें क्या है? लेकिन for a large part of our society it seems like उनको लगता है ये वजह बनती है कि अकेले नहीं जाना चाहिए था. And this is the gender segregation. This is what it is कि जहाँ आपको लगता है कि बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. अब निकलना ही नहीं चाहिए तो जब भी होगा आप औरत पे ही डालेंगे. आप कहेंगे ये निकली थी ना इसीलिए ये हुआ, ये बाप से बदतमीजी करती थी ना तो सख्ती हुई बाप ने की. एंड यू विल फाइंड, या फिर ये बोली क्यों नहीं, जिसका मनाल ने जिक्र किया, इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब वो केस हुआ था जहां उस बच्ची के अपने घर वाले उसमें शामिल थे, उसके भाई शामिल थे, और उसमें ये समझ आती थी कि वो उनपे डिपेंडेंट थी, वो छोटी थी. और उसमें उस केस में भी लोग कह रहे थे कि ये पहले क्यों नहीं बोली. I mean, a 15-year-old girl, and the excuses we found was that ये बोली क्यों नहीं. तो घर के अंदर जब अपने भी करते हैं तो तब भी इल्जाम उसी पे लगता है, क्योंकि ये इसी तरह से समाज चलता है कि पहले तो आप उनको बोलने के काबिल नहीं छोड़ते और जब वो बोलती नहीं है तो भी उन पे इल्जाम, और बोल दें तो फिर भी उन पे इल्जाम. तो वो तो हम किसी तरह से बच सकते हैं इस रेप कल्चर में. But why do you think that is though? Why do we do that? Like हम victim को, is it just I'm just wondering कि if it's just because हम औरत को कम समझते हैं, जो कि obviously that is one of the root causes, but at any level do you guys think it also has to do something with किसी किस्म का ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं हमने बना लिया कि यार हम सेफ हैं रेप से क्योंकि you know हम ये 4 चीजें नहीं कर रहे, so वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्लेक्ट कर देना फौरन as a bystander or as an outsider. I don't know, I'm just क्या कहते हैं musing. I think it's a bit of both. 2-3 चीजें हैं. एक तो ये कि आप you will have to look at general patriarchy overall, कि हर जगह ही ये बात की जाती है, खातून के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है, उसकी बॉडीज को शेम किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है. So this is, I believe कि obviously this is deflection, a distraction from having a real conversation about rape culture. And actually, you know, ये बहुत कड़वा सच है to accept कि हमारे हर घर के अंदर किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का शौहर एक potential या actual rapist है. So this conversation is hard enough, and that's why you see obviously the overlap between the people who talk about severity of punishments and the people who don't want to talk about rape culture, because for them it's, you know, कि बस सजा दे देगी, और वो उनका एक तरीका होता है of distancing that person from society, right? कि ये तो एक गलीज barbaric दरिंदा है जो हम में से नहीं है, हमारे मर्द इस तरह के नहीं हैं, respectable मर्द इस तरह के नहीं हैं. So I think you're absolutely right that this is distraction, it's deflection. But I think number 2, you also have to look at the specific context of Pakistan, और खास तौर पे जो you know
during Ziaul Haq's time, how it was public discourse के अंदर जब ये चादर और चार दीवारी वाला concept आया, मेरे नज़दीक I think that was sort of a catalyst for कि जब ये discourse के अगर बाहर जाएगी तो ये होगा शायद और ज़्यादा speed up हो गया, क्योंकि ये जब public discourse में आ रहा है, रियासती हुकूमती इदारे ये बात कर रहे हैं कि औरत की जगह ही सिर्फ घर के अंदर है, and then they're bringing in sort of utilizing religion to complement those those notions of the fact that women belong inside the home. तो वो एक general division हो चुका था औरतों का society से, और ये बात बहुत ज़्यादा ingrain की गई लोगों के अंदर कि ये औरत की जगह है, पर्दा चार दीवारी, जो बाहर जाती भी है उसको पर्दा लेना चाहिए. And this is where in the national discourse victim blaming became a phenomenon, which is why the women who were fighting against that, symbolically, one of the first things they did was sort of take off their veils and take off their dupattas and things like that, because it was them asserting the fact कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी violence से, और हमारी existence जो है वो सिर्फ चादर और चार दीवारी में नहीं रह सकती. So I think definitely ये एक distraction भी है from having the real conversation, from going deep into the fact कि क्या गलीज और बहुत ही ज़्यादा terrifying reality है patriarchy की, कहीं भी ये हो सकता है. और दूसरा, I think there are some specific historical things with the intermingling of religion and state that has led to this. Ironic है ना कि लोग अब ज़ियाउल हक को इस तरह शेयर कर रहे हैं as a hero. We need another ज़ियाउल हक, जिस अभी मैं But we need to see कि वो कौन लोग हैं जो ज़ियाउल हक को as a hero पेश कर रहे हैं. पिछले जो वो वही ज़िया की बाकियात में से हैं. जमीयत इस्लामी के जो पिछले अमीर थे, उनकी एक क्लिप भी आई हुई है कि अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हुई है और उसके पास 4 विटनेसेस नहीं हैं, 4 मर्द विटनेसेस, ऑफ कोर्स औरत की गवाही थोड़ी होती इक्वल, तो वो बताए ना, ये बेहतर होगा. सो यस, जिस तरह हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट पावर, के जो शायद इंसान, एंड तुबा इज हियर एज वेल, सो आई थिंक शी माइट आल्सो एग्री, कि जो सिस्टम से बेनिफिट करता है ना, वो कभी सिस्टम बदलेगा नहीं. पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम द स्टेटस को. सो पेट्रियार्की में शायद जो मर्द कैट कॉल कर रहा है या हरास कर रहा है, शायद वो ये नहीं सोच रहा कि मैं पेट्रियार्की परपेचुएट कर रहा हूँ. जिस तरह से अगर कोई लेबर एक्सप्लॉइट करता है तो वो नहीं सोच रहा कि मैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को परपेचुएट कर रहा हूँ. लेकिन होता यही है कि अब अगर खुदा न खास्ता इतना बुरा वाकया हुआ, इसका रिजल्ट अगर ये है कि अब माँ बाप अपनी बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, या एक वक्त के बाद वो बाहर नहीं जा सकेंगे, तो सिस्टम से तो वो मर्द ही बेनिफिट कर रहे हैं. सो मनाल, आपका जो सवाल था, एज अ मैन आई कैन टेल यू कि द साइलेंट बेनिफिट्स दैट मेन गेट फ्रॉम पेट्रियार्की, उस पे वो लोग हमेशा खामोश ही रहेंगे, क्योंकि एंड में आप ही का उस सिस्टम से फायदा होता है. नहीं, ऑल्सो हमारी एक दोस्त हैं नाजिश ब्रोही, वो कहती हैं कि जो जब ये लोग कहते हैं ना कि ये जो लोग हैं वो जहनी मरीज हैं और दरिंदे हैं, जिस तरह नायाब करी थी कि हम में से नहीं हैं और ये मतलब ये मर्द ही नहीं है, और इस तरह की बात करना, बेसिकली वो मुआशरे में मर्दानगी का जो मस्कुलिनिटी का जो कदरें तय की हुई है, उससे वो बाहर, उस तसव्वुर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. लेकिन जबकि मसला ये है कि जो माशरे ने मर्दानगी और मस्कुलिनिटी को जो कदरों से नापा गया है, वही असल हमारे मसले का जड़ है. तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है. और ऑल्सो हमना ने यहाँ पे एक बात की थी कि जो मेन स्ट्रीम वायलेंस है जिस रियासत में, और मैं सिर्फ एक रियासत की बात नहीं कर रही, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हो, हमारे हिस्टोरिकल अगर आप देखें, हिस्ट्री में देखें, वहां ऐसी रियासत में जहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो औरत के कपड़ों को मुतनाज़ा करार दे दें, जहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहें कि फेमिनिज्म जो है वो हमारी माओं को खराब कर रहा है, और जहाँ पे जो इस किस्म के रेप अपॉलोजिस्ट हैं जिनकी शक्ल नजर आई है CCPO, और इससे पहले याद है आपको मार्च के महीने में कमर जमान या कमर रहमान जो भी उनका नाम है, उन्होंने जो खलीलुर रहमान, आई डोंट इवन रिमेम्बर, ही इज नॉट दैट, कमर जमान कायरा साहब तो बेचारे डिसेंट है. नहीं, वो तो मैं कमर रहमान की बात कर रही हूँ. खलीलुर रहमान जो भी हैं वो बहरहाल मतलब मैंने तो उनको अपनी मेमोरी से थोड़ा वॉश आउट भी किया हुआ है. सो इस किस्म के जो लोग हैं ना, वो हमें मुशर्रफ आल्सो सेड कि मुख्तारा माई इसलिए कर रही है कि असाइलम मिल जाए इसको, और इसलिए करवाती हैं कि उनको असाइलम मिल जाए.
हाँ कि इसलिए कि उनको वीजा मिल जाए। उन्होंने जी। डॉक्टर जो शाजिया का रेप केस हुआ था उसमें भी उन्होंने इसी तरह की अपनी ख्याल आराई की थी। तो ऐसी ऐसी रियासत जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं और उसमें बैठे हुए लोग जो हैं वो इस किस्म के ख्यालात रखते हो, वहां पे आप एक माशरे में क्या मतलब कि क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो डिपेंड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स क्या सोसाइटी में रखे हुए हैं मस्कुलिनिटी को लेके, पेट्रियोटिज्म को लेके, शरीफ और किरदार वाली औरत को लेके, अच्छी औरत को लेके, बुरे मर्द को लेके। तो वी नीड टू सी ऑल्सो, बिकॉज ये वो सारी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं किसी भी सोसाइटी में जो रेप कल्चर है जब जो प्रिवेल करता है। And I just wanted to jump in and say that, things we're talking about, abhi hum societal norms ki baat kar rahe hain, but when you look at it a little bit from the legal constitutional aspect, तो आप देखते हैं कि things that you don't think about on a daily basis, the things that you don't think about, जैसे कि the hudud ordinances में जो कहा गया था कि one woman's testimony is not equal to one man's testimony, मतलब कि मर्द और औरत में ये फर्क है कि वो औरत कम है, right, उसकी गवाह कम है। So that is also a big contributing factor to men thinking कि औरत अब तो property है, एक कुछ मतलब कि unimportant सी चीज है, हमारे हक में है, whatever, she's less than us, ठीक है। तो I'm not going to say that changing systems, the judicial system, changing laws will eradicate rape culture, मैं ये नहीं कह रही, but I'm saying कि we have to acknowledge कि systems or structures में क्या चीजें हैं which enable this rape culture and which are actually responsible for making men believe that women are less than them, ठीक है। तो something like this, the Hudud ordinance, right? सिंपल सी चीजें जैसे अगर आप अपना लाइसेंस या NIC बनवाते हो तो इट्स लिस्टेड कि आपके वालिद का नाम क्या है, राइट? नो वन विल आस्क यू कि आपकी वालिदा का नाम क्या है, ठीक है। तो आप सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आई एम माई फादर्स प्रॉपर्टी, राइट, आई एम माई फादर्स बिजनेस, ठीक है। तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें हैं that we don't think about on a daily basis, but they all contribute to fueling this rape culture, this idea कि औरत को छेड़ना हमारे हक में है, औरत को मतलब कि काबू में रखना हमारे हक में है। All of these things contribute to this culture, and until we start to change our laws, you're not going to see that much of a change in society, ठीक है। Now I'm not saying it's going to happen overnight or one is completely dependent on the other, but any conversation about rape culture is incomplete if you don't talk about these things. And I'm not only talking about laws against rape, by the way. Laws against rape, like the act of rape, ये अलग बात है, ये दूसरे किस्म के laws हैं। inheritance laws आप देख लें, ठीक है। this sends a message कि औरत मर्द से कम है, ठीक है। child custody के laws, all of these things, they contribute to this culture. Even, I mean, I think अभी तो in the news आज ही ये बात डिस्कस भी हो रही है कि रेप के अगेंस्ट तो आपके लॉज हैं, बट देन फॉर एग्जांपल अगर आप रेप रिपोर्ट कर देते हैं तो जो एक हमारे यहाँ वर्जिनिटी टेस्टिंग अभी तक हो रही है, राइट, कि आपको फिर रेप के बाद FIR कटानी पड़ती है, फिर आपको मेडिकल आपका होता है, और उसके अंदर आयरनी सबसे है कि आपके साथ जो हुआ है जो कि रेप है, वही लिटरली आपके साथ वापस होता है इस बात को टेस्ट करने के लिए कि आप रेप हुए कि नहीं हुए, जहाँ पे 2 फिंगर टेस्ट अप्लाई होता है। आई थिंक पीपल नो अबाउट दिस नाउ, and you see this is where protests like Aurat March, or this is where all of that comes in, because 2 years ago जब Aurat March पहली हुई है यहाँ 2018 में, I think पहली वाली हुई थी, बड़ी वाली, जी जी उसके अंदर this was a topic of बड़ी conversation. सारी हो रही है बाय द वे, हर साल बड़ी से बड़ी होती जा रही है, तो वो बड़ी वाली yes, it's getting bigger and it gets more traction and it gets a more क्या कहते हैं result. Like I'm connecting this to this two finger test law. Yeah. 2 साल पहले 2018 में जब protest हुई थी तो people were carrying lots of posters, right, but people were carrying और लोग कह रहे थे कि भाई आप वाहियात बातें क्यों कर रहे हैं, आप laws के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, but unfortunately those people did not notice कि posters ये भी बोल रहे थे कि ban virginity testing, ban this 2 test rule. And 2 years later, then we saw some of that come into effect last year,
I think there were a group of activists, lawyers who petitioned against Yes. the क्या कहते हैं जिसमें Faria Aziz I think was one of the petitioners. Faria Aziz and our friend Zainab and couple of others. Yeah. There were quite a few people जिन्होंने ये बात पे petition करी, कोर्ट के पास लेके गए, और आज ये न्यूज़ आई है, मैंने पूरी अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट कि मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट के पास जो है ये ऑर्डर जा रहा है कि भाई ये अब आप इसको अबॉलिश करें, ये 2 finger टेस्ट को. The judge's response has not been ideal to that. जो जज का रिस्पॉन्स आया है, पर प्रोग्रेस ऑफ कोर्स वो तो जाहिर है, बट द फैक्ट दैट यू सी इस एक इतनी बेसिक चीज को 2 साल तो अभी सिर्फ, और ये तो मैं बहुत ही न्यू एक आपको बात बता रही हूँ, आई एम श्योर Also not very scientific, by the way. हाँ, इट्स नॉट साइंटिफिक, बट आई मीन कि जो इसके पीछे सारी काम हो रहा है वो तो तूबा कैन टेल बेटर, लाइक ऑल ऑफ द labor that's gone into coming to this point. It's not just 2 years, right? It's like years of protesting and fighting. और अभी कितने साल और लगेंगे, अभी आप जजेस को कन्विंस करेंगे कि भाई आप as basic as कि आप भाई 2 finger टेस्ट ना करें, आप मॉडर्न टाइम्स हैं, कोई और तरीका अपनाएं, डीएनए टेस्टिंग करें, आप सीसीटीवी कैमरास आप इंस्टॉल ज्यादा करें, मतलब व्हाटएवर, कि आप वापस से वही वाली बात कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाली चीज भी आप एक ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड एक इंसान के ऊपर आप और ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट करें, और फिर और ये एक बेसिक लॉ है जिसके ऊपर लोग अभी लड़ रहे हैं इसको चेंज करने के लिए कि एटलीस्ट Thank you for raising this point. I remember last year Asmat Khanejo का केस हुआ था, शहजाद, you remember? इब्राहिम हैदरी में, this girl जिसको डेंटल एक्ट हुआ और उसके बाद वो within 1 hour उसका I would say कि मर्डर हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस जो भी है, और उस वक्त आंखें खुल के रह गई कि एक डेड बॉडी के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है 2 finger टेस्ट, और उसकी वर्जिनिटी को क्वेश्चन किया जाता है. जी हाँ, उसकी वर्जिनिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है. एंड इट्स नॉट अबाउट लॉज ओनली बट ट्रेनिंग इन लोगों की. डू यू नो इन कराची ओनली वी हैव ओनली 2 मेडिकल लीगल ऑफिसर, राइट? और उनकी सेंसिटाइजेशन क्या है, एक माइनर बच्ची के साथ भी 2 finger टेस्ट अप्लाई होता है और एक डेड बॉडी के साथ भी होता है. तो दिस इज द प्लेस वी आर लिविंग इन, कि 2 finger टेस्ट जैसी बोगस सी चीज के लिए भी अभी भी हमें औरत मार्चें करनी पड़ रही है. आई मीन ये तो वो चीजें हैं जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जद्दोजहद में 2 finger टेस्ट भी हमारे नसीबों में लिखी गई है. और जब हम कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं हमारे ऊपर कि ये करें और ये ना करें. नो, ये इस सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वो सिर्फ लॉज से तब्दील होने वाली नहीं है. हमें उन कैरेक्टर्स को भी देखना होगा जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जो हमें रूल कर रहे हैं, कि वो किस तरीके से खुद औरत को डिह्यूमनाइज करते हैं. आपके लॉज के बाद जो प्रोसीजर्स हैं, आप 2 finger टेस्ट देख लीजिए, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, इट्स बेसिकली टू डिह्यूमनाइज वुमेन बॉडी. जब आप 2 finger टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर पूरा जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है सर्वाइवर्स के साथ, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. मेरे अपने और हम सब जितने भी लोग हैं, कॉमरेड तूबा यहाँ बैठी हैं, हमना की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होंगी, मनाल आपका एक्सपीरियंस होगा, नायाब है यहाँ पर, हम सब लोग कहीं ना कहीं इन केसेस और सर्वाइवर्स के साथ जुड़े हैं, और हमने देखा है कि वो ट्रॉमा जो एक रेप सर्वाइवर रेप के बाद से गुजरा होता है, एक और ट्रॉमा उसके साथ शुरू हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, जहाँ पे वो जस्टिस के लिए देख रही है. मेडिको लीगल एग्जामिनेशन से लेके कटहरे में खड़े होने तक हर जगह उसकी एजेंसी को क्वेश्चन किया जाता है, हर जगह पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ उस औरत के ऊपर होता है. तो सिर्फ और सिर्फ लॉज के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के दिमागों में जो है ना ये चीज ठूस के डाली होगी दैट वी आर इक्वल ह्यूमन बीइंग, एंड फॉर गॉड सेक हमारा जो रोल है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव रोल से नहीं जुड़ा हुआ, कि आप जब भी औरत को देखें तो उसकी जिन्स के अंदर ही देखें. हम दिमाग भी रखते हैं, मतलब इट्स सो लाइक एनोइंग कि लास्ट जब 2020 की औरत मार्च हुई, एंड दिस एंकर पर्सन वाज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि जी आपका तो मैनिफेस्टो जो है वो डिफेंस बजट की भी बात कर रहा है, और आपका तो ये भी कह रहा है कि जी किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. व्हाई द हेल दे कांट इवन अंडरस्टैंड कि हम जहन रखते हैं, हम सियासत कर सकते हैं, हम मईशत चला सकते हैं, हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं, तो हम बोल क्यों नहीं सकते सब चीजों के ऊपर. आई थिंक ट्रिगरिंग के बारे में इतना जिक्र होता है कि हम रेप का वर्ड भी सेंसर करते हैं, पीपल रियलाइज कितना ट्रिगरिंग है, लेकिन जब होता है इंसिडेंट लोग कहते हैं गो टू द कोर्ट, सी व्हाट द जस्टिस सिस्टम इज. आप पहले पुलिस वाले को कहानी बताएं,
फिर बाकी पुलिस वालों को कहानी बताएं, फिर 10 साल कोर्ट के सामने खड़े होकर अपना कैरेक्टर क्वेश्चन फॉर अ माइनर, फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमन टू डू दैट ओवर 10 years in rooms आप full of सब men छोड़ दीजिए multiple मुख्तारा माई का times. केस, मुख्तारा माई का इतना हाई प्रोफाइल केस क्या हुआ, देख लीजिए क्या हुआ उस केस में। हम ना यू तो वांट ये से तो हमारा जस्टिस सिस्टम का हाल है। और फिर कहते हैं जी मी टू ना कीजिए और रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ जाएं। यस आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन एक कैथारसिस भी तो कोई चीज होती है ना। तो ये हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ पे तो हम हमारे जुबान पे भी जो है वो ताले लगे हुए हैं, और उसके उन तालों के ऊपर जो है ना वो ताले पे ताला, कभी मजहब का ताला लग जाता है, कभी शराफत का ताला लग जाता है। हम कहते हैं जी मॉरल पुलिसिंग ना करें, और आप कहते हैं जो सही से बैठो, हम कहते हैं लोग बैठ के ही सही से, आप कहते हैं ये तो बहुत फहाशी है। हम कहते हैं जी डिक पिक्चर्स ना भेजें, तो आगे से सवाल आता है कि ओहो आपने डिक की बात कर दी है तो बहुत फहाशी है। तो भाई तुम भेजो नहीं ना, तकलीफ क्या है तुम्हें? हम तो इस फहाशी को रोक रहे हैं, और हमसे कहा जाता है कि इस फहाशी को रोकने का जो अमल है वो खुद फहाशी है। तो मेरे ख्याल में तमाम एक्सक्यूजेज हैं, यू आर वेरी राइट, की जो बेनिफिशरीज हैं इस पेट्रियार्कल सिस्टम के, वो या तो ज्यादातर खामोश रहते हैं, और जब मुंह खोल के बोलते हैं तो इसी तरह की बकवास सुनने में आती है, जो कभी सीसीपीओ साहब कह देते हैं, कभी वो 2 टके की औरत, तो कभी इस तरह की बकवास हमें सुनने में आती रहती है। नयाब ने तो बहुत करीब से ही सुना था खलील रहमान कमर के साथ शोज करके। हम ना यू I वांट was टू just, से yeah, Yeah, go ahead. no, I was. एक comment मेरा था when you said कि औरतों को, especially women's rights activists को हम देखते हैं कि अच्छा आप इसी बात पे बात करें, किसी और चीज पे ना बात करें. And I think this extends also to professional life, journalism. I think Manal, you'll identify with me. Where sometimes people will be like, आप औरत हैं, आप औरतों की issues को cover करें, आप politics में क्यों आ रही हैं, आप economy में क्यों घुस रही हैं, आप अपने काम से काम रखें, right? And I'm reminded of something Imran Khan said many years ago. उन्होंने कहा था कि ये feminism क्या है, पहले तो हम poverty alleviate करें, पहले हम human rights देंगे और फिर gender पे आएंगे, as if they were two अलग separate थोड़ी ये things. चीजें हैं, As if अलग women चीजें are not नहीं हैं. human. Yeah. Exactly, है ना? So this mindset के औरत मतलब कि एक बिल्कुल अलग चीज है, उसकी concerns अलग हैं, society से अलग हैं, not related to the broader economy, political systems, जो भी, that needs to change, right? So I don't know. Aji, I think Tuba kept a Interestingly- status about this, so I'd like her to expand on this, especially left and feminism and how those things come in hand. I think Tuba Azad, was are the you perfect reading our person. mind? Because मैं हमने की बात पे यही कहना चाह रही थी कि आवाजें सिर्फ कंजर्वेटिव ग्रुप से नहीं आती हैं। एंड कॉमरेड तूबा भी इस पे बात कर सकेंगी कि हम यही सुनते हैं जब हम औरत का सवाल उठाते हैं, तो उसमें भी हम अक्सर ये सुनते हैं कि नहीं जी, पहले जी हम आजादी का सवाल उठेगा, फिर कौम आजाद हो जाएगी तो हम तालीम का सवाल उठाएंगे, सेहत का सवाल उठाएंगे, और फिर ये सब चीजें हमें जब मिल जाएंगी बेसिक, फिर औरत का सवाल उठाएंगे। एज इफ कि तालीम का सवाल औरत के सवाल को उठाए बगैर पूरा हो सकता है कभी, या सेहत का सवाल औरत के सवाल को उठाए बगैर हो सकता है। तो ये सिर्फ जो चीजें हैं ना, हम कोई हमारी कोई एक कोई एनिमी नहीं है। औरत दुश्मनी जो है ना, वो अपेरेंटली बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हलकों से भी ऐसी आवाजें आती हैं। और आप तो आज ट्विटर पे अब तो किसी को खोजने की जरूरत ही नहीं रही है, एक ट्वीट ही पूरा कला कमा कर देती है बंदे का कि वो उनकी सोच कहाँ से आ रही है। और बड़े बड़े जो कहते हैं ना आइडियाज जो हैं वो टूटते हैं, एक ट्वीट जो है वो पता चला देती है कि जी इनके पेट में भी दाढ़ी है। Overall, I think I आज think, मकसद यही है जी। हम ना नहीं, I'm just saying कि एक हम काफी like negativity पे focus कर रहे हैं, obviously because the situation is pretty dire, but I would just like to say as a bright spot, one of the really positive developments that I have seen in society in general, but also feminist spaces over the past few years is we are moving away from this idea कि औरत सिर्फ एक बात पे बात कर सकती है, right? And we're moving, and ये idea कहाँ से आता है? ये patriarchy से आता है, which says कि औरत कम है, और because वो कम है वो सिर्फ एक दो बातों पे फोकस करेगी, right? And हमने इतना internalize किया है इस बात को कि हम खुद ही अपने आप को question करते हैं कि do I have a right to speak about this? Like, am I knowledgeable enough to speak about this? क्या मेरा हक है कि नहीं है? So I think the positive development that I've seen, at least, is that we are questioning our own beliefs. And we are saying, actually, I do have a right to speak about this. Actually, poverty alleviation or gender concerns, haath mein haath chalti hain,
right? Same goes with any human rights abuse. The same goes with the economy. आप इनको अलग नहीं कर सकते. So that is a positive development. And ये भी है कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई positive developments नहीं आई, कुछ हैं. But one other point that I want to raise, I think, Kurat, you were speaking about this, कि we have this very twisted idea about moral purity in this country, and ये I want to say कि ये ज़िया के ज़माने से आया है, but that's not true. ये बहुत पहले से आ रहा है, right? I think it just intensified in that era और वो चलता गया कि this idea of what is good morals, you know? और हमारे society में ये है कि good morals ये है कि आप औरत हो तो ढके रहो, या फिर मर्द हो तो you know provide for your family. Or this whole concept of good morals or moral being a moral person means that you don't lie, you don't steal, you don't cheat, आप किसी का हक नहीं मारो, आप मतलब कि रेप नहीं करो, इतनी basic चीज, right? For some reason ये हम morality नहीं देखते. We don't think this is morality at all. और जब हमारे moral purity पे बात आती है और good character, bad character पे बात आता है, we don't even consider these things to be bad. So it's in society it's a very complex topic, which that I don't have the answers for exactly. Interestingly, जब मैंने आज पैनल की पोस्ट डाली तो किसी ने ये मैसेज भी किया था, what are their credentials to speak about women's issues? So as women आप लोग हक क्या मिलता है आपको? औरत होना काफी नहीं है क्या यार? I can tell Tuba's wanted to say something for a while. No, I was just you mentioned the thread, but वो तो खैर थोड़ा unrelated था, थोड़ा related था. Because मैं बहुत ज़्यादा I see this a lot as somebody who's been a feminist and also been a socialist. It's very difficult to navigate progressive spaces for me personally. Because disowning मेरी बड़ी चलती रहती है. यहाँ से left disown करते हैं, यहाँ से feminist disown करती हैं. And the point of my tweet in that was that so often when we're talking about left, we're only talking about men. And I take deep offense at that. I take very serious offense at that, because that invisibilizes a lot of women in the left and a lot of work of the men in the left. आज से 4 साल पहले जब औरत marches नहीं हो रही थी, तो काम तो हो रहा था. Feminist तब भी मौजूद थी, वो तब भी organize कर रही थी, औरतों के साथ ही कर रही थी, और वो marches भी organize कर रही थी, जिन्हें औरत march ही कहते थे. लेकिन क्योंकि you know, they could not get that kind of hype because it was from the section which criticizes state also. और क्योंकि state का criticism, पिछले 20 साल की मार, फांसियां, चौराहों पे लटकाना, all of that, I think, and it's very good कि अब ये हो रहा है, but मुझे ज़ाती तौर पे अक्सर ये लगता है कि हमारे अपने रवैये भी काफी patriarchal होते हैं जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. It's only natural when you live in such a society that I often seen when women, when feminists who are not organizing with the left, or generally liberals who don't know, who are not very in on the organizing circles, when they talk of the left, they only seeing 2 men. I'm just like, you're probably missing out on many women in their labor, जो कि वो इस left में करती हैं, जो एक खास तर्ज की feminist politics भी करती हैं, जो यहाँ से जो अंदर भी लड़ती हैं और बाहर भी लड़ती हैं, और फिर रियासत से भी लड़ती हैं. मतलब उनकी ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये बहुत लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाती हैं. So ये मैं बहुत एक डिस्कशन देख रही थी, कोई कह रहा था, and of course there's always आपने सवाल भी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि मर्दों का क्या रोल है, या जो औरतें नहीं हैं वो क्या रोल प्ले कर सकती है. तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी मुश्किल बात ही नहीं है समझना कि लोग क्या मतलब आप कर सकते. How is it so difficult? It's only made so complicated. I have for the most part of my life I've organized with both men and women, and I've never organized in segregated spaces. It's only very recently that I've started organizing in segregated spaces, and I found it difficult to navigate those spaces in, you know, at some points. और वो इस वजह से नहीं था कि हम सब औरतें नहीं थी, वो इसलिए था कि आपका रवैया, आपके तरीके कार ऑर्गेनाइजिंग के सिर्फ आपका जेंडर तय नहीं करता, आपका तबका भी तय करता है. अगर कहीं बहुत आदमी, बहुत औरतें बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है
कि सिर्फ मर्द नहीं बोलेंगे, औरतें नहीं बोलेंगी, कुछ खास किस्म के मर्द बोलेंगे और कुछ खास किस्म की औरतें भी आसानी से बोल पाएंगी। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और वहां पे मेरी क्लास बहुत डाइवर्स होती है। कुछ लड़के पूरा साल नहीं बोलते और कुछ लड़कियां पूरा साल बोल लेती हैं। सो इट्स, आई थिंक हमें इस वक्त, मुझे ये लगता है कि कभी कभी डर पड़ता है कि बहुत ज्यादा हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की तरफ भी ना जाएं, क्योंकि अक्सर अक्सर ये मुमकिन है कि ये कन्वर्सेशन कि औरत की समाज में हैसियत और सिर्फ औरत होना ये जरूरी नहीं है। मतलब इस वक्त कैमला हैरिस भी तो एक खातून है, हिलरी क्लिंटन भी एक खातून थी, मार्गरेट थैचर भी एक खातून है, you know, you name it and there's so many of them. So I think ये भी थोड़ा जहन में ये भी जरूरी है कि बहुत सी जगहों पे सिर्फ आपका औरत होना काफी नहीं होता, कि आप कौन औरत हैं, आप क्या प्रिविलेजेस लेके आ रही हैं, उनकी वजह से जैसे हम, मुझे लगता है कि एक सेल्फ जो क्रिटिक मैं लेती हूँ बड़ा ओपनली लेती हूँ, औरत मार्च के ऊपर जो आता है ये निशानदेही भी कर लेती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि ये बना के तो ऐसे दिखा रहे हैं कि बड़ा लिजिट क्रिटिक है, लेकिन इनका अपना बुग्ज है अंदर। जैसे कभी कभी लेफ्ट के कुछ हलकों से क्रिटिक के आता है कि काफी सारी जो मार्चेस हैं वो एलीट होती हैं, लेकिन उसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर वर्किंग क्लास औरतें लेफ्ट ने क्यों नहीं मोबिलाइज की, वो क्यों नहीं हो सका। सो आई थिंक ये और एक चीज जो समझनी बड़ी जरूरत है कि ना लेफ्ट चल सकती है फेमिनिस्ट मूवमेंट के बगैर और ना फेमिनिस्ट मूवमेंट कुछ बहुत आगे तक जा सकेगी लेफ्ट के बगैर, क्योंकि जब तक आपके मुल्क के अंदर एक क्रिटिकल मास नहीं मौजूद होता चीजों का हल बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद जैसे, अब कुछ शहरों में तो एक, जैसे कराची मुझे लगता है निस्बतन, इस्लामाबाद देखने में कंजर्वेटिव नहीं है लेकिन सियासी तौर पे एक इंतहाई कंजर्वेटिव शहर है, जिसमें लाल मस्जिद मौजूद है, सुन्नी तहरीक का वहाँ पे एक अपना गलबा है, हमारे प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ नहीं बहन, यहाँ पे भी आप नुमाइश पर आ जाएं प्लीज। हाँ, यहाँ पे लियारी में भी आप वो नारे लगने शुरू हो गए हैं, ऐसा मत करें, हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरी गली में रैली हुई है ये, मैं रहता हूँ उस जी गली जी, में, जो अभी अभी 3 दिन से आप नहीं देख रहे जो हो रहा है तूबा, मतलब आप तो फिर भी I've also फैसलाबाद been हमारे shocked तो पड़ोस honestly. में बैठ जाते हैं आके। Even though I live there, it's quite shocking जो अभी ये रैली हुई है. It's just maybe I was ignorant. It was It's not a alarming. generalization. Let's not like go into calling out each other. It's a bit weird. समंदर है आपके पास, समंदर नहीं है ना, कराची बेहतर। नहीं, I'm talking about the Islamabad is a politically conservative city. इसके अंदर मतलब हम जब मार्च कर रहे थे हमारे पास NOC मौजूद था, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत दी कि आप कर सकते हैं, और हमें उससे 3 दिन पहले वो कॉल करते हैं कि नहीं वो मुल्ला भी करने आ रहे हैं तो आप नहीं कर सकते इस वक्त। हमने कहा हमने तो आपसे कब से NOC लिया, अब ऐसा कैसे मुमकिन है। सो वो उसके अंदर हमें ये नजर आया कि उन्होंने आए, वो अटैक भी किए, मार भी दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हम डर रहे थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करें। सो आई थिंक ये इससे आपको समझ आती है कि कैसे सारी प्रोग्रेसिव कुव्वतों का जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो एजेंडा, हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कराची के अंदर जो हो रहा है उसको कोई एड्रेस कर नहीं रहा है इस वक्त। I mean, look at what we're walking into state. और औरतों को कहा जाता है, जैसे उन्होंने कहा हम बात करने की इजाजत ही नहीं है, औरत है तो औरत पे बात करें, लेकिन जो शिया कम्युनिटी के साथ इस वक्त इस पूरे मुल्क में हो रहा है, हमें नजर आता है कोई ऐसी कुव्वत तैयार ही नहीं है। सिर्फ अगर आपकी अपनी आइडेंटिटी शिया होगी तो आप इस पे बात करेंगे, वरना मुश्किल है। तो आई थिंक ये भी देखना बहुत जरूरी है, कहीं ये ना हो कि हम एक दूसरे को कॉल आउट करते करते कहीं 4 उधर 6 इधर और 2 उधर। Absolutely. अभी शिया I would agree with you with this. We fail to create a critical mass at this point कि हम अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम उस जगह नहीं पहुंच सके कि हम अभी उस कम्युनिटी के लिए कौन आवाज उठाएगा जहां पे अभी उस तरह का क्रिटिकल मास डेवलप नहीं हुआ, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो एक माइनॉरिटी है, वो मार्जिनलाइज है। So I think it's very necessary to think about ways how we can actually bring it together, and it's hard work. I'm not saying कि मर्दों के साथ काम करना कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल काम है। नहीं तूबा, in addition to what you've just said, एक तो ये क्रिटिक औरत मार्च पे जो आई है वो शुरू से ही आई है और इसको बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ उस तरीके से, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड
एंड हैविंग सेड दैट कि ये 2018 में ये फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं आई है, मतलब पिछले 35-40 साल से मतलब फहमीदा रियाज को आप कहाँ लेके जाएंगे और आप जो है वो वैफ को कहाँ लेके जाएंगे? Zaira Mazhar Ali Khan, which is 1951. She was the first woman who said that people should have, women and men, पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद पहली दफा अगर किसी औरत ने ये बात की थी कि औरत और मर्द का जो वेजेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, that was Zaira Mazhar Ali Khan. और आसमा जहांगीर को कहाँ लेके जाएंगे अगर हम सिर्फ ये कहें कि फेमिनिस्ट मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई है? तो ये बिल्कुल भी कहना नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि आइडियोलॉजी, हम सब लोग किसी ना किसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही जिंदा हैं, मतलब नजरिए के बगैर तो कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, ये मेरा अपना अकीदा है। लेकिन जब एक सोसाइटी में जब आप काम करने के लिए निकलते हैं, पॉलिटिसाइजेशन के लिए निकलते हैं, तो किसी ना किसी मिनिमम डिनोमिनेटर पे आपको आके रुकना पड़ेगा। और इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट दिस डिबेट। आई थिंक सदियों से ये डिबेट चलती आ रही है लिबरल्स और लेफ्ट की और ये सारा कुछ, बट आई थिंक कम से कम औरत के सवाल को उठाने के लिए, औरत की मूवमेंट को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए हमें एक ना एक मिनिमम डिनोमिनेटर पर रुकना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए अपने आप को लिबरल और लेफ्ट के ये जो ब्रैकेट्स हैं उससे निकालने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना एनालिसिस पीछे रखें, लेकिन ये जो एक फोर्सेस हैं आपस में, इनको जुड़ने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि वर्किंग क्लास या जो मजदूर तबका है उसकी आवाज को दबा के और आप क्रॉस क्लास की बात करें, लेकिन हमारे पास इसके अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं और अपनी आवाज ऐसी आवाजों के साथ नहीं जोड़ रहे हैं जो कि ज्यादा आवाजें हैं, ज्यादा पावरफुल आवाजें हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल देखें औरत मार्च की भी, तो औरत मार्च क्या है, साल में एक दफा तमाम औरतें अपना जो प्रिविलेज, आप अपना एक प्रिविलेज रखती हैं, मैं अपना एक प्रिविलेज रखती हूँ, हर कोई अपना या तो तबकाती कोई प्रिविलेज होगा या इंटेलेक्चुअल कोई प्रिविलेज होगा ना, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना लेबर डालते हैं एक दिन के लिए, और फिर क्या होता है, वो औरतें, लेडी हेल्थ वर्कर्स आके बात कर रही हैं, माहिगीर औरतें आके बात कर रही हैं, होम बेस्ड वर्कर्स आके बात कर रही हैं, मतलब वो औरतें, मिसिंग पर्सन के ऊपर बात हो रही है। और एक जो बात आपने कही थी ना, वो मुझे एकदम से यहाँ पे लगी है कि उससे पहले हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे 2018 की औरत मार्च से पहले के रियासत को क्वेश्चन नहीं करते थे। मेरा ख्याल है कराची में पहली दफा 5000 औरतें आके रियासत को भी सवाल कर रही थी, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की भी बात कर रही थी, और मलिक रियाज की भी धज्जियां उछाल रही थी कि लेफ्ट के ऊपर एक खास कदगन है, टीवी नहीं दिखाएगा। तो मैं बात ये कर रही थी कि वो कदगन की वजह से बहुत सा काम जो होता है वो नजर नहीं आता। इसका हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था कि नहीं औरत मार्च नहीं करती। मैं औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर हूँ, आप जानती हैं। So let's just be like a bit more open in how we are understanding things. और जो नजर आना होता है काम का, क्योंकि जो ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये आपको भी पता है, औरत मार्च नजर आती है, उसके पीछे जो काम होता है वो नजर नहीं आता। So my point was कि जो काम होता है वो नजर नहीं आता, लेकिन उस दिन जिसने जैसे देखना होता है, जो दिखाना होता है वो नजर आता है। So it was not at all to say, I mean आज अगर आप देखें जो इस वक्त प्लकार्ड्स खवातीन ने उठाए हैं, चाहे वो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, हैदराबाद, they were directly speaking to the state. There was no single city where women have not expressed that the state has failed us. CCPO क्या है? CCPO स्टेट ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये स्टेट है और आप हमें कहते हैं इनसे जाके हम इंसाफ मांगे और हम केस करें, तो हम इनसे इंसाफ लेंगे। जो कि हमें पहला सवाल उनका ये है कि आप बाहर क्यों निकली, ये सवाल नहीं है कि पुलिस क्यों नहीं पहुंची, औरतें क्यों मोटरवे पे जहाँ पे बिलियंस लगाते हैं ये इस डेवलपमेंट पे, हमें कहते हैं कि ये लाखों के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और अगर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर औरत महफूज नहीं है, that means those projects are for less than 50%. Instead the CCPOs comes and asks us कि आप रात को, आधी रात को क्यों निकली। So definitely I think मैं किसी और उसमें बात कर रही थी जो कि इधर चली गई, but that was certainly not what I was trying to say. कि we're talking about criticisms, we're talking about कि ये movements view कैसे होती हैं। So I wanted to say कि ये जो मर्द की जो criticisms आती हैं, या whether it's औरत march or anti-rape protest या any protest which is kind of related to women or any movement which is related to women,
आई थिंक एक तो पर्सनली मैं इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेती. आई थिंक अनलेस आप एक मूवमेंट में इन्वॉल्व हो, या तो आइडियोलॉजिकली या फिर ऑन ग्राउंड इन योर ऑर्गेनाइजिंग, आपको इतना हक नहीं होता टू रियली कमेंट ऑन इट. और अगर आप कमेंट भी कर लें चलें, इट्स मेरा हक नहीं है कि मैं आपको सीरियसली लूं. ठीक है? सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, राइट? एंड सेकेंडली, क्रिटिसिज्म जो मेल स्फीयर्स से आता है, it is usually not genuine, not sincere, not interested in actually furthering the cause of the movement or improving it. Criticism इस intention से आता है कि मैं इसको, इसमें flaws किस तरह निकालूं और इसको नीचे किस तरह दबाऊं, discredit कैसे करूं. ठीक है? That is how, that is where the criticism comes from. ठीक है? And I think as women who are part of a bigger feminist movement, whatever our own ideological leanings within it, हमें इस चीज को समझना चाहिए, right? And we should also be cognizant कि हम अपनी जो criticisms निकालते हैं वो किस intention से निकाल रहे हैं, right? Because like you said, we do have to have this bigger goal in our mind. Now, when it comes to rape culture, bringing that back, I and said I'm not a saying critical mass. I didn't say a bigger goal. I don't believe in bigger. yeah. I said a critical mass, a bigger I agree mass. with you. Because we are small in number in all movements. Yeah, no, that I agree with. But when bringing it back to rape culture, आप देखें कि the same kind of criticisms that men have about Aurat March, women's movements, you know, all of these things, ये rape culture में को कैसे influence करती हैं. In rape culture also, you will see that men cause the problem. ठीक है? चलें men ना कहें तो toxic masculinity, state power, जो भी, you know, we can substitute that. But in a looser term, men, they cause the problem, but then they expect women to fix the problem they have caused. Do you see what I'm saying? So even in criticism when it comes to the Aurat March, men have caused these problems via patriarchy, and they are expecting women to fix them, and women to fix even the problems in their own movement, but even the problems that men have caused, right? And I think when you said about women criticizing the state, we are finally coming to a point where even people outside, even people who don't identify as activists, right? Those people are now trying to hold the state accountable and say, okay, ending rape culture is not the women's responsibility. It is the responsibility of all of society. It is the responsibility of the state, my father, your brother, my employer, the MNC, the chai dhaba owner, anything. Okay? So this, I think, is something positive to focus on again. And ये भी है कि we should always be cognizant कि जो लोग rape को, मतलब कि rape apologists होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? They are just shirking their responsibility, because responsibility उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं उसको change. अगर broader change नहीं ला सकते तो एक बंदे के mindset को तो change कर सकते हैं, right? But they are just offsetting their responsibility onto the woman by saying घर से ना निकलो. They don't want to take responsibility. So I wanted to raise that point of where does the responsibility actually lie, and who, when people criticize these movements and when people criticize anti-rape protests, where is that criticism coming from? You know, it's not sincere. I want to add to this. Yeah. So I think this is absolutely true. Like, and you know, in the past sort of year or so, because आप अगर कभी कहीं अपना तज्जिया दे रहे हैं, whether it's, you know, on TV, on social media, things like that, people, 1% of the people who are interacting with you will actually genuinely have questions and will come from a place where they want to where they're curious to learn कि ये तहरीक क्या है, ये movement क्या है, feminism क्या है, and 99% are people who are trying to discredit you. So I think हम सबका experience ये है कि हमें थोड़ा सा differentiate करना चाहिए between our internal जो feminist circles से जो आ रही है तनकीद और जो मर्दों से आ रही है, because I feel like कि मर्दों की जो तनकीद है, it is often laced with
whole lot of laziness because वो खुद कुछ नहीं कर रहे और खुद बैठे हुए हैं और वो खुद डिस्ट्रैक्ट करते हैं मसाइल से कि आप इस पे बोल रही थी, इस पे क्यों नहीं बोल रही, तो भाई आप बोल लो, यानी ये क्या बात हुई कि मैं हर चीज, मैंने ठेका उठाया हुआ है हर चीज के ऊपर बोलने का. So we have to really I think really not let this bother us that much anymore. मतलब मेरे ख्याल में तो हमें engage भी सिर्फ वही करना चाहिए जहां हमें लगता है कि कोई इंसान genuinely हमसे curiously कोई बात कर रहा है और वहां पर कोई फायदा है हमसे बात करने का. जहां तक हमारी अपनी movements की बात है, I think Tuba and Kurat said brilliant things and I think बात यही है कि एक balance होना चाहिए. उसका पहला स्टेप ये है कि एवरीबडी सिटिंग हियर और मुख्तलिफ लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और सारे, हमें अपने प्रिविलेज के बारे में कॉग्निसेंट होना चाहिए बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, you know. So I think it's about having a balance between the different ideological leanings. ना हम बहुत ज़्यादा गर्ल बॉस फेमिनिज्म की तरफ मतलब जाएं, ना हम you know कोशिश करें कि सबको इंक्लूड करें as long as you know the central sort of tenets are there. And I think एक दूसरे के साथ बहस करना, तनकीद करना, it's genuine. But I want to move towards sort of the whole point of unlearning this culture, and I want to start with representations of women in the media because this links to something that Hamna said earlier. जो एक बात हो रही थी, आप काफी लोगों ने कहा कि हम खुद भी हमें imposter syndrome होता है जब हम ये सोचते हैं कि मैंने इकोनॉमी की बात कर दी तो मैंने ये बात कर दी तो ये बात कर दी. अब अगर आप representations देखें, and then we can talk about other institutions, whoever wants to add to that, but I want to talk about both news media and entertainment media. Entertainment media के अंदर ख़वातीन जो दिखाई जाती हैं उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता बाहर की दुनिया से, यानी कि जो मेजॉरिटी ख़वातीन दिखाई हैं उनको आज तक उनको ये अखबार पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. वो घर भी आती हैं, उनके शौहर भी जब घर आते हैं तो वो कहती हैं छोड़े ना, ये क्या आप ऑफिस की बातें कर रहे हैं और सियासत की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें. सच है fetishized sort of male fantasy type woman that is shown, dumbed down, you know, absolutely someone who has no clue about anything. And then linking it to, you know, even the news media, even though I think there are a lot of really competent women there, but मुझे समझ नहीं आती कि ख़वातीन के मसाइल पे बात करने के लिए अभी भी अथॉरिटी मर्दों को ही समझा जाता है. मतलब 4 दिन से हम male panels, there are they've literally been like, you know, one panel that I was on, there were 3 other men there. Another panel that I was just on, there were like 2 other men there. I don't understand कि हमारे अंदर वो समझते नहीं है कि ये सलाहियत है अपने ही मसाइल के बारे में बात करने की या whatever. So yeah, I just wanted to start with you know this dumbing down of women and the representations of women, and I think that's something that really adds to dehumanizing them and lessening their value. As a man, मैं आपको बता दूं, हमें ज़्यादा सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए. एंड जो ये लोग सारे क्रिटिसाइज करते हैं ना कि कम्युनिकेशन का मसला है, आई थिंक इफ फेमिनिस्ट कम्युनिकेटेड थिंग्स बेटर, ये बकवास होती है. थिंग्स लाइक मुझसे लोग पूछते हैं हाउ शुड मैन फ्लर्ट इन द एरा ऑफ मी टू. किसको नहीं पता? एक बच्चे से आप पूछ लें यस और नो का फर्क क्या. यू रियली थिंक इतने हम उल्लू के पट्टे हैं कि हमें कंसेंट भी नहीं पता यस और नो का फर्क? दे नो एग्जैक्टली व्हेन दे से how to flirt in the Me Too era, what they're asking is how to get away with harassment. That's the question. Shahzad, can I just jump in? ये मेरी सबसे बड़ी gripe है actually with our you know esteemed male population, कि एक मुंह से बोलते हैं कि हम superior हैं, हम intelligent हैं, हमें कोई छेड़ नहीं सकता intelligence में, ठीक है, rationality में, logic में. और दूसरे मुंह से बोलते हैं और दूसरे मुंह से बोलते हैं कि Me Too, हमें तो फ्लर्टेशन समझ नहीं आ रही. अब हम तो आपके सिग्नल्स रीड ही नहीं कर सकते, आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स रीड नहीं कर सकते, आपने नहीं बोला वो भी नहीं समझ सकते, मतलब कि फिजिकल अर्जेस कंट्रोल भी नहीं कर सकते. कंट्रोल भी नहीं कर सकते. तो भाई आप क्या हो? आप मतलब कि आप आसमान से गिरे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, या आप यू नो आर यू लाइक एन इन्फेंट कि यू कांट कंट्रोल योर अर्जेस?
तो ये डबल स्टैंडर्ड्स लोग कॉल आउट नहीं करते और मर्द कॉल आउट नहीं करते. जब मर्द मतलब कि अपने सर्कल्स में बात कर रहे हैं, राइट, अपने दोस्तों के साथ, when they say these things, their other friends don't call them out. They don't say, "Bhai, kya baat kar rahe ho?" It's so easy to tell if a woman is Bro saying yes or no, They would come right? and tell you, Pro they code. gossip about it कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, पर ये नहीं Yeah. बताएंगे कि खुद क्या कर रहे थे. I mean, But it's the I'll tell culture you shock. guys about a conversation I had on the sidelines of the protest. ये अभी जो protest हुआ था press club के आगे. So I was talking to a friend of mine, and we were talking about how to sensitize men. And she said, mentioned about someone in her family, and the man said, "How do I talk to my friends about this? You know, they'll make fun of me. तो मैं topic कैसे उठाऊं, rape का topic कैसे उठाऊं उनके साथ?" And I think that this is the conversation that needs to happen, which we as feminist activists, I don't know how we can support it, because ये मर्द के अंदर ही conversation होनी जरूरी है. And Shehzad, maybe you can then shed some light on this, because men, Yeah. how will they start talking about it? हम अपने आप में तो normalize कर सकते हैं, हम मीडिया में के सामने आके बोल सकते हैं, लेकिन ये जो घरों में conversations हो रही हैं, चाय ढाबों के सामने हो रही हैं, with all the male friends gathered together, how can they stop feeling ashamed I of fully talking intend about to Me do Too? a separate podcast on incel culture and male allyship to exactly be like किस तरह बात करें. Yes, as somebody who's slightly older, it's easier for me to say this कि मुझे अगर किसी तरह के comments आते हैं ना, if I say something which is even like radical male position मेरी सबसे radical के don't rape women, which is seen as ultimate simping, कि इतनी radical position कैसे हो सकती है. तो उस पे बच्चों के comments आते हैं ना कि नहीं देगी, तू जो भी कर ले, नहीं मिलेगी तुझे, as if the only reason you'll think women are human beings is to get laid. As if, or march or feminist movements में ये होता है ना, if there's a guy there, people are like, wow, he's a feminist, let's just have sex. तो that happened. हमारे साथ जो बेचारे आदमियों ने प्ले में काम किया था, उनकी तस्वीरें हर जगह लग के उन्हें नाम मर्द कह रहे थे. तो one of the guys who was putting poster up, उसको वहां खड़े खड़े उन्होंने कहा तू मर्द नहीं है क्या है, उसको मारने के लिए 4-5 बंदे आ गए. So the attack men faced actually at one point in Islamabad got more horrible than, मतलब मुझे तो गालियां मिल रही थी, उनको तो फिजिकली मारने आ गए. एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा मर्द का औरत के लिए बोलना कितना बड़ा मसला है. टू से कि मैं आजादी औरत मार्च का सपोर्ट. Thanks, all of you have realized how tough. No, I'm kidding. It's nothing compared to. I don't think as a man I've ever received a comment that we will rape you. इस गांड मार देंगे, इस तरह की टाइप आते हैं. खैर, but it's probably the same thing. लेकिन the point is, it's the same. as a slightly older man, I can laugh at those, but I can imagine if you're 16 and you're in school and आपके सारे boys अगर इकट्ठा होके बोलते हैं कि हाँ तू सिर्फ लेने के लिए ऐसी बातें करता है, ये करता है, it's braver of that kid to stand up and say something in that moment. How to do that maybe is a separate discussion. I do want to bring it back to something that Tuba said right at the start, which I thought was very interesting, कि एक हमने ideal victim भी बनाया हुआ है. Maybe in this case attention ज़्यादा है या nation के जज्बात ज़्यादा उजागर हुए हैं because एक माँ थी अपने बच्चों के सामने कैसे. Even though in response to the same incident, आज ही मुझे, I mean, I don't know if you guys have seen this. There's certain memes which are despicable भी एक छोटा लफ्ज होगा. Like मारवी सरमत के बारे में एक मोटरवे के बारे में एक meme है. Yes. Yeah, Like I saw. एक I saw अनमोल that. बलोच एक मॉडल है, उन पे जो comments आए हुए हैं. If it was a model, if it was an actress, I think the Yes. nation's response would have been radically different. Yes. वो I तो want अगर to ये say something दोपहर के interesting. 4:30 बजे होता तो शायद वो जो एक लास्ट वेस्टेज रह गया था रात के 12:30 बजे कैसे, उस पे सब people have held on to that. वो भी नहीं होता तो I don't know what we would have thought, but we've also created this box. Yeah. एक माँ को बच्चों के सामने कैसे कर सकते I just wanted to link this back to something Nayab was talking about earlier. अभी जैसे हम entertainment, media entertainment की बात कर रहे थे, तो ये the thing that you're talking about, that Tuba actually brought up about the ideal victim, ये जो Madonna horror complex है, ये आपको बहुत ही basic, मतलब हमारे ड्रामे भरे हुए हैं इससे. आप हमसफर जैसा ड्रामा देख लें, ठीक है, एक औरत होगी जो सती सावित्री है, जो बेचारी है, गरीब होगी, शलवार कमीज पहनेगी, फिर एक होगी जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अमीर और घर की शायद होगी, क्योंकि इंग्लिश
speaking सफर कर रही होगी बेचारी, परेशान होगी, अकेली होगी, बच्चे भी पाल रही होगी, और ये वाला जो ड्रामा दो मैं एग्जांपल्स देना चाहती हूँ फ्रॉम ड्रामास जहाँ पे ये थोड़े पुराने, मतलब इतने भी पुराने नहीं है, बट एक आपका हमसफर है, ठीक है, जैसे ड्रामा है, उसके अंदर ये आपका कॉम्प्लेक्स के आइडियल विक्टिम, आइडियल औरत वर्सेस द बुरी औरत, राइट? क्या हुआ उस एंड में, उस ड्रामे के एंड में, आई डोंट नो इफ यू गाइस हाउ मेनी हैव सीन हमसफर, बट वो अपने आप को मार देती है ना, मेरे ख्याल से डिप्रेशन में आके, नवीन वकार, शी किल्स हरसेल्फ बिकॉज़ फिर एक और ड्रामा था मन मायल, मेरे ख्याल से उसका नाम था, जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स फिर वापस थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। माया अली जो है आपकी, शी इज क्या कहते हैं, द मेन लीड इन दैट शो, एंड हमजा क्या क्या गौहर रशीद था उसके अंदर, एंड आयशा खान, आई थिंक शी गॉट मैरिड एंड नाउ हर नेम हैज चेंज्ड, बट शी वाज इन द ड्रामा एज वेल। उसमें भी ये कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर भी यही था कि माया वाज दिस बेचारी सबमिसिव किस्म की औरत, एंड आयशा वाज दिस manipulative and go getter and I'll go get what I want kind of woman। उस ड्रामे में भी आयशा मर जाती है, वो भी अपने आप को मार देती है। मतलब अब आप देखें कि एक जो सती सावित्री है उसको मियाँ मिल जाता है, और जो इंडिपेंडेंट आउटस्पोकन कनिंग मैनिपुलेटिव गो गेटर औरत होती है वो मर जाती है। मतलब उसका और कोई आउटकम ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसकी और कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो आइडियल विक्टिम है ये हम लोग इतनी बेसिक जगहों के अंदर हम लोग देखते हैं कि परपेचुएट हो रहा होता है। इट्स नॉट इवन एज बिग एज न्यूज या व्हाटएवर वी दिस इज अभी ये जो ड्रामा था 2% की औरत वाला जो I don't remember its name, लेकिन उसमें तो शदीद विक्टिमाइज किया गया है बेचारे मर्द को, सारा कुछ जुल्म होता है और आखिर में वही मर जाता है बिकॉज ऑफ अ बुरी औरत। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब उन्होंने कहा चलो आदमी को मार देते हैं, फेमिनिस्ट दिख नहीं रहा ना मसाला, थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा ये इधर लेकर आते हैं। मर्द बेचारा विक्टिम, मर्द के पास ऑप्शन ही नहीं है, मर्द को पता ही नहीं है मीटू में फ्लर्ट कैसे करना है वरना तो मीटू लग जाएगा। ये सारी There's also one where I think Ikra Aziz is lying about being sexually assaulted by a Sharif husband. झूठी हाँ झूठी। But इसको आप consider ये भी है कि I don't know if you watched the 2017 film जो शोएब मंसूर ने बनाई थी, Varna. That was supposed to be Shoaib Mansoor's next big thing. It was starring Mahira Khan and Haroon Shahid, I think. उसमें माहिरा, हाँ, I think उन दोनों ने देखी थी सिर्फ वो। मैंने देखी थी। But उसमें विक्टिम जो हैं वो गैंग रेप होती है, ठीक है? And I'm just trying to tell you कि इन मीडिया हेड्स और फिल्म मेकर्स के अपने सोच में रेप का इतना कंफ्यूजिंग आइडिया होता है कि ये औरत गैंग रेप होती है, ठीक है, और वो 2 दिन के लिए आई थिंक शी इज बीन किडनैप्ड बाय हर रेपिस्ट हु इज अ पावरफुल मैन, फिर वो वापस की जाती है, ठीक है, टू हर फैमिली, और उसमें डीएनए एविडेंस मतलब कि इनकंक्लूसिव होता है, तो वो दिखाते हैं कि शी देन goes back to seduce her rapist just in order to get DNA evidence. ठीक है, ये प्लॉट मतलब कि ये प्लॉट है मूवी का, राइट? और इतनी ग्रोस मिसअंडरस्टैंडिंग कि रेप विक्टिम का ट्रॉमा इतना, मतलब कि आप कैसे ये दिखा सकते हैं कि someone who has gone through gang rape would ever willingly go back to that person even if it is to get justice, ठीक है? तो हम now if an average person is watching this film, वो तो सिनेमा से निकलेगा and he'll be like अच्छा रेप no big deal, वो तो वापस चली गई उसके पास, right? तो ये subtle चीज भी नहीं है, ये मतलब कि आप you're hitting people over the head with the idea कि rape is not a big deal. तो I wrote about this when it came out. I thought it was a gross irresponsibility, और काफी औरों ने भी कहा था. But there is something wrong with our system when this kind of film or these kinds of TVs can, these kinds of shows can pass through censors, which encourage actually rape and abuse, and other things do not. We live in a society जहाँ एक status कल viral हुआ था, which said boyfriend करे तो sex, कोई और करे तो rape. Yeah. As if that was मतलब ये अब उस इंसान को आप समझाएं भी क्या? So I mean either Kurat, तू और Nayab to address this. What do you think के communicate अगर हम कर रहे हैं to a society? Do you take existing concepts that they have and try to communicate through that? So for instance, a concept like वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है. Obviously, the ideal response is that you shouldn't just respect somebody because they're somebody's mother or somebody's sister. But if by saying that it stops
somebody from committing sexual harassment and assault, do you take their existing concepts and try to improve those, or do you be like, nahi, ye sabhi galat hai, and let's just aim for the ideal? How do you communicate? Tough question. I can try. So I think I might be a minority when I'm talking about this, लेकिन मुझे ये लगता है कि it has to be a balance of both things. Because I'll tell you one thing, convincing people is it's not easy, and many times आपको बहुत ज़्यादा manipulative भी होना पड़ता है लोगों को convince करने के लिए, और बहुत दफ़ा आप लोगों को अपने आप को उनके रंग में ढालना भी पड़ता है. You must use concepts and conversations they understand. Sometimes you disagree with those things, but you think about the broader picture and all of that. अब मुझे ये लगता है कि दोनों चीजें जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. मतलब कि फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन थिंग, जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर आया था तो there was a very formative moment for us कि हमने जब इसको of course every woman can also interpret this themselves, but हमने इसको the formal definition we are putting out when we're going on TV channels and things like that, what do we want it to be? Do we want it to be something that is going to cause, even though it can be anything, right? A woman can interpret it as whatever she wants, but हम क्या चाहते हैं कि हमने कैसे करना है लोगों को कन्विंस करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट बॉडीली ऑटोनॉमी का सिर्फ मतलब फहाशी तक महदूद नहीं है and things like that, right? So there was a debate about this and things like that. फिर इस बात पे भी डिबेट थी कि बहुत हमारे पे एक टाइम पे प्रेशर आ गया था कि इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दो, इसकी बजाय किसी और चीज को लो. दैट इज वेयर वी मेड द डिसीजन टू कीप इट, राइट? सो इट वाज अ बैलेंस कि आपने उसको एलैबोरेट कैसे करना है, राइट? उसमें से क्या चीजें जो आपने ज्यादा स्ट्रेस करनी है which you think will click with people, लेकिन हमने इस चीज पे भी stood our ground कि हमने इसको जाने नहीं देना. We are going to carry this with us. बहुत दफा I spoke about a lot of bodily rights that were given by God and by Islam and things like that. So साथ साथ हम obviously push भी कर रहे हैं boundaries को in certain ways. But I think वहां पर आपको अपनी ऑडियंस का भी पता होना चाहिए कि उस वक्त कौन सी ऑडियंस है, क्या ऑडियंस किस चीज पे बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी, उनके क्या रेफरेंसेस हैं. सो व्हाट आई हैव लर्नड, एंड आई थिंक लाइक Tuba can probably answer this as well much better than myself, but what I've learned is कि बड़ा ही ये अजीब सा एक ट्रिकी सा बैलेंस होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि उस वक्त आपको ये डिसीजन करना पड़ता है. एंड ऑल्सो आई हैव टू से वन थिंग, इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट पीपल टू ऑलवेज गो आउट एंड गेट हेट, राइट? मतलब हर किसी का एक मेंटल थ्रेशोल्ड होता है जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, खास तौर पे जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, जो लोग वो सारा कुछ कर रहे हैं. तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि लोग ये चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिव भी हो, सिर्फ हमें गालियां ना पड़ें, ये वो एक्सेट्रा, राइट? सो लाइक इफ यू आर डूइंग अ लाइव सेशन विद मोइज और समथिंग, राइट, वो एक फर्क ऑडियंस है. मेनी टाइम्स यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर दैट यू कांट, बट इफ you're on national television, you also have to think about your own safety, the type of audience there is and all of that. So Moiz and I still might say the same things. वो channel चलाएगा नहीं. शायद बातें हम वही करें फिर भी. पर वो बीप आना शुरू हो जाएगी ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. So I just feel like it's tricky. There has to be balance, and frankly speaking, you have to be a bit clever about it. I think Tuba जो big tent की बात कर रही थी कि maybe if somebody believes in मेरा जिस्म मेरी मर्जी but doesn't think women have a right to abortion, they're still welcome as part of the movement. But then no, like I don't know where do you draw the line कि यार नहीं ये uncompromisables हैं, but maybe here big tent everybody's part of it. I don't believe in, I don't believe कि मैं एक दफा बात करूंगी या कोई भी एक दफा बात करेगा तो उधर बात खत्म हो जाएगी या वहां पे आप पूरी मुकम्मल बात कर सकते हैं. आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजर आपको पता होता है कि कहीं भी आपने काम करना है तो ये एक स्ट्रगल है, एक मुसलसल काम है.
जो आप मतलब ना मेरे से शुरू तूबा एक इंटरव्यू में कुछ किसी का ना उखाड़ सकती है ना उसको बदल सकती है। तूबा अपनी पूरी जिंदगी में काम करके जा सकती है और फिर आगे क्या होगा वो अगले लोग करेंगे। सो आई थिंक एज्यूमिंग के आप अकेले कुछ कर लेंगे और आपके कहने से कुछ बदल जाएगा, ये थोड़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं आपको समझ आती है कि लोगों को तब्दील होने में, लोगों को जुड़ने में और सियासत को बनने में दिहाइयां लगती हैं। तो आई थिंक जो नायाब ने बात की कि वैसे तो टीवी पे आपने सही कहा शहजाद कि वो आप सख्त बात कर दो बुलाते ही नहीं है, लेकिन जब आप सख्त बात नहीं करते वो चला भी देते हैं, उसका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं। उस पर मैं बहुत रेडिकल बात भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं कि आप क्या कह रहे थे। So I think it's the consistent effort you put into organizing and working with people and engaging with them on a real human level. आमने सामने बैठ के उनके साथ बैठ के जब आप काम करने लगते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये चीजें मुमकिन कैसे हैं। I mean, I work with people जहां मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका पास कैसा था, बड़े मुनासिब लोग लग रहे थे अपने हाल के अंदर वो। और जब हम बातें करने लगे और जब उन्होंने मुझे बताया कि उनका माजी क्या रह चुका है, I was shocked to the point that I couldn't speak to these people for a couple of months because I was having such a hard time understanding that someone I know or someone I've been friends with was a sexual assaulter 6 years back, right? So for me, when they opened up to me and in their way they were thanking me and they were like, you know, from that time to here we've come today, but it's only fair that मैं बात करूं, and I couldn't deal with it. But then I realized it took bloody 6 years, and I still don't know. They still might have a lot more going on, and so do other people. So I think ये बड़ा एक बहुत लंबा काम होता है, ये एक दफा का काम है ही नहीं, आप कर नहीं सकते। आपकी एक कन्वर्सेशन में इतनी बात होती तो क्या ये थोड़ी औरतें इतनी समझदार या थोड़ी समझदार बातें कर रही हैं? अब तक तो फिर इनकलाब आ जाना चाहिए था अगर ऐसे काम बनता होता। I mean, किसी एक औरत मार्च पे मुझे एक बेवकूफ औरत नजर नहीं आती बात करते हुए। तो I think it's just continuously working, which is tiring, and इसीलिए शायद अपने ऊपर इतना बोझ लेना नहीं चाहिए कि मैं अकेली या हम ही हैं। हमसे पहले भी थे, हमसे आगे भी आएंगे, ये एक सिलसिला है और बदलेगी चीजें। इसीलिए तो तूबा हमने आपको बुलाया, हम में से कोई बोझ नहीं लेना चाहता। जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं everybody like I think Tuba will address this. Kurat, you look like you want to say something. So yes, I do agree with what my comrades like Tuba और नायाब ने कहा है। ऑर्गेनाइजिंग और जो स्ट्रगल है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास फॉर्मूलाज हों। सो यस, आई अंडरस्टैंड कि जब आप कम्युनिटीज में वर्किंग क्लास के साथ बैठते हैं अपने प्रिविलेज को अंडरस्टैंड करते हुए, आपको उनकी लैंग्वेज, उनका स्टेटस, उनके प्रॉब्लम्स, जो उनके मसाले हैं, उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जुड़ने के लिए एक कोई ना कोई ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी से पहले पूरी एक डिस्कशन थी ना कि ये सिर्फ अबॉर्शन के राइट्स के ऊपर नहीं है। हमने मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को पूरा रिक्लेम किया है, अपनी एग्जिस्टेंस से जोड़ा है, तभी उसकी एक्सेप्टेंस है। इब्राहिम हैदरी की एक माहीगीर औरत भी नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और वो जो किमाड़ी में बैठी हुई औरत है वो भी नारा लगाती है, और जो गडाफ टाउन से आती है वो भी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राइट टू अबॉर्शन की बात हो रही है। तो हमने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है ना इस नारे को, अपनी पूरी पॉलिटिक्स को। लेकिन हैविंग सेड दैट, कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ रहे होते हैं, आपको उनके मेयार के मुताबिक, उनकी शर्तों के मुताबिक जुड़ना होता है, राइट? क्योंकि हम सेवियर नहीं है। हम अगर तूबा इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, नायाब कर रही है, हम में से जितनी भी औरतें कर रही हैं, हम अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और उस जंग के लिए हम जुड़ रहे हैं दूसरी औरतों के साथ। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि हम सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ जाते हैं लोगों को और बोलते हैं जी हम आपको निकालेंगे बाहर और हम जो हैं वो गॉड मदर्स आ गए हैं, यू नो, जस्ट लाइक हम जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये मेरी भी लर्निंग है। जिस तरह कॉमरेड का साथ रहा है, हमने भी सीखा है ठोकरे खा के, इसी तरह हरासर्स की दुनिया में बैठ के सब कुछ हम भी इधर ही से निकल कर आए। मुझे लगता है कि जो 40-50 साल से फेमिनिस्ट मूवमेंट रही है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो इसी तरह चल रही थी, यू नो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बातें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में होती रही हैं। खुद हमारी
वो कॉमरेड है रुबीना सहगल, उनका कहना ये है कि जी मुझे 20 साल लगे हैं कि 20-20 औरतों के ग्रुप में मैं ये बात कह सकूं, मेरा जिसम मेरी मर्जी। आप लोग आए हैं, आपने एक पोस्टर उठाया और सड़क के बीच में खड़े होकर बोल दिया रेडिकल उसमें कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, और इट हैज बिकम पार्ट ऑफ अ डिस्कोर्स। जो कभी आप यानी आपको किसी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए करना पड़ता है ना, थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो माशरे की अखलाकियात और रिस्पेक्टेबिलिटी की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए चलें। कभी आपको धक्का लगाना पड़ता है अपने स्टेटस को आगे ले जाने के लिए। एंड आई थिंक जो नई टैक्सेस हैं, जो नई ये जो यंगर फेमिनिस्ट निकल कर आ रही हैं, इनके अंदर वो चीज है कि वो पीछे से एक्सपीरियंस भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि सियासत कैसे करेंगे, और फिर एकदम से जो गुस्सा है, मेरे ख्याल में गुस्सा भी बहुत जरूरी है इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। वो चीजें जो बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में किसी खास किस्म की टारगेट ऑडियंस में हो रही थी, आई वाज हैप्पी आफ्टर 2018 कि जी मेरा जिसम मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, यानी इस तरह की चीजें जो हैं वो फौरन गई हैं लोगों के अंदर। और फिर ये चीज कहना कि अपनी डिक पिक्चर अपने पास रखो, समथिंग वेरी आप इस माशरे में जहाँ पे औरत को रिस्पेक्टेबिलिटी के ढांचे में डाल दिया गया है, इट्स वेरी रेडिकल एंड आई थिंक इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट के, और यही सियासत है मेरे ख्याल में। if it got Oria Maqbool Jan to go on TV and say dick pics, I think कुछ ना कुछ अगर ओरिया मकबूल जान जैसा इंसान टीवी पे जाके कह सकता है ला हौल वला कुव्वत, इन्होंने कहा है dick pics, तो I mean if that could run on Neo जैसा, तो आई बिलीव कि ये जरूरी है, जो कुछ कहते तो हैं किया, ना, कुछ तो दीवार के लिए achievement। एक धक्का जरूरी होता है। हाँ। तो वो धक्का भी बहुत जरूरी है, और ऑर्गेनाइजिंग जब आप करते हैं तो फिर जरूर कॉन्टेक्स्ट को देखें। और मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है जब हम काफी सारी चीजों के ऊपर बहुत बहुत खुल के, इवन नायाब नेशनल टीवी की बात करी थी, आपने कह दिया औरिया मकबूल जान जो है वो डिक पिक्चर के नाम ले रहे हैं। मतलब हम जैसे लड़कियां जो कि मारवी सरमत का जो ड्रामा हुआ था हमदुल्ला के साथ, और हम लोग कहते थे ये क्या क्या हो रहा है, हम जैसी लड़कियां जाके मौलवियों के साथ बैठ के कहते हैं जी मेरा जिससे मेरी मर्जी का मतलब ये है सर, आप क्यों उसको उरियानियत में लेते हैं। तो ये चेंज आया है एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट एग्रेशन। I didn't mean to reduce मेरा जैसे मेरी मर्जी to abortion rights. I just want to give an extreme example to get आई वाज Shahzad's जस्ट, मैं opinion सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी कि on the हमने big tent रिक्लेम thing. किया। तो शहजाद, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि Yeah, yeah. रिक्लेम किया है बिकॉज इट वाज नीड ऑफ द Brilliant. It was हमारे brilliant. कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि जब लियारी की लड़की निकल कर आती है और वो कहती है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसका मतलब है कि आपका जो वो है ना, जो आपका जो नारा है, वो ये नारा वर्किंग क्लास के अंदर घुस गया है, और उसके ऊपर आपने Sorry, I just want to add something, and in reference to what Nayab was saying, I feel like कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर किस्म का effort, as long as it's an effort, भले वो aggressive effort हो, भले वो balanced हो, जिसकी नायाब बात कर रही है कि individualistic effort हो, अब not everyone can be part of organizing protests and movements like these. तो day to day basis के अंदर कुछ लोगों का pacifist approach है, कुछ लोगों का aggressive approach है. People, so I feel like at this point it's just any kind of तरीका that you क्या कहते हैं अपनाओ। Sorry मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स कर रही हूँ, कोई भी तरीका आपने मेरे जैसे एनार्किस्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। मेरा तो वायलेंट, मैं आपको भी मैं इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि at this point it feels like कि हर as long as सब कोई एफर्ट कर रहे हैं, राइट, कि आई नो कि बहुत सारी इमोशनल लेबर भी जा रही है, हमारी फिजिकल लेबर भी जा रही है औरतों की, बट देन वही बात आ जाती है कि भाई जिसकी मूवमेंट है वो उन्होंने ही लीड करनी है, राइट। तो इसीलिए सारा काम का बर्डन भी हमारे ऊपर ही एंड में आ जाता है कि हमें आदमियों को एजुकेट भी हमने करना है, आदमियों को डराना भी हमने है, गुस्सा भी हमने ही दिखाना है, फिर उनको तरीके से भी प्यार से भी उनको कुछ जैसे हैं जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझाना है। बिकॉज फिर लाइक फॉर एग्जांपल अभी व्हेन यू पोस्टेड ऑन ट्विटर अबाउट दिस पैनल, so somebody tweeted saying कि भाई what about male allies, what should they be doing right now, because हम ये भी तो एक important discussion होना चाहिए कि कितने सारे आदमी जो कि मिसगाइडेड भी हैं या वो हेल्प करना चाह रहे हैं वो ओवरस्टेप कर देते हैं। We spoke about men who are criticizing the movement, right? कि उनका क्या हमें how to be around them, but then there's also that कि what about the men who are trying to be helpful, और वो जो भी वजह है उनकी कि या तो वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं या वो एक्चुअली जेन्युइन allies हैं या वो कोई एजेंडा ड्रिवन है या वो trying to get laid, whatever their reasoning is,
then that question comes up there too. And then what Nayab said about के balance रखना, कि भाई कुछ लोगों का approach ये है कि भाई आप जरूरी नहीं है कि आप गुस्सा, you speak a language that the person understands. अब अगर वो माँ बहन की बात ही समझता है बंदा, तो फिर आप उसको उसी तरीके से समझाएं और क्या करें. अच्छा, जो ये ट्राइंग टू गेट लेट वाली बात है, ये भी हमना की बात पे जाती है कि वो भी औरतों को कमतर समझते हैं. लाइक व्हाट डू यू थिंक इज ट्राइंग टू गेट लेट? समबडी सेज वुमेन हैव इक्वल राइट्स, वुमेन विल लाइक हाँ यही तो. और क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? जो डिक पिक्स भेजता है, जो अदर्स Shahzad, I'm इनबॉक्स just में going डिक पिक्स to भेजता है. interrupt you and say that I have to leave. So thank you so much, and everybody, thank you so much. This was such a learning experience and like an honor for me to be in the same space as you guys. So thank you, and please continue. Bye. Yeah, thank you so much for joining me. Let me just complete that thought. I also have to leave I just want actually. complete that thought and then we'll just move towards the end. हाँ. जो इंसान अदर्स इनबॉक्स में डिक पिक भेजता है, वो दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज कर रहा है दैट यू वांट टू गेट लेट, जो वुमेन राइट्स की बात करता है. पता भी नहीं चला 8 बज गए. आई एम रियली सॉरी अबाउट टू कीप ऑल ऑफ यू फॉर दिस लॉन्ग, बट इट्स जस्ट ऑनेस्टली दिस कन्वर्सेशन वाज क्वाइट इंसाइटफुल. एंड मनाल भी जो बात कर रही थी और बीच में तुबा भी जो कर रही थी, आई थिंक we should not let perfect be the enemy of good. As long as it's progressive, as long as it's good, even if it's imperfect in many ways, yes, उस पे एक nuanced criticism हो सकती है, but उसको dismissal या उसको वो ना समझें कि किसी चीज को cancel completely. Oh, like men say, why was X issue not discussed? That doesn't mean it negates 99 other issues. Like even the placards की बात होती है, हर इशू पे प्लेकार्ड होता है. शायद हर इशू का प्लेकार्ड वायरल नहीं होता, बट होता है. सो व्हेन यू से समथिंग लाइक इसका क्यों नहीं है, अगर आप गूगल कर लें तो आपको मिल जाएगा. एंड जस्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ द कन्वर्सेशन टुगेदर, हमना, इफ यू हैव टू रन देन maybe just say your piece. No, just really enjoyed talking to you, and thank you all. Thank you, Amna, for educating us. Thank you. Bye, Amna. So thank you everybody for joining. I would just like everybody to close and bring it all together. I think हम लोगों ने explicit connection नहीं बनाया कि जो प्लेकार्ड्स पे बात हो रही होती है, अगर वो रेप कल्चर की चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह वही चीज लीड्स टू रेप. बट आई होप द एंटायर डिस्कशन मेड दैट कंप्लीटली ऑब्वियस कि ये जो एवरीडे अग्रेशंस हैं, ये जो एवरीडे वायलेंस है, उसका इनएविटेबिलिटी होती है रेप. वो उसका इनएविटेबल कंक्लूजन है. और जब तक हम इन चीजों पे नहीं लड़ेंगे, एक दो लोगों को टांग कर आपको कुछ नहीं मिल जाएगा. एंड इट्स आल्सो आयरॉनिक दैट ये हैंग द रेपिस्ट ज्यादातर मर्द हैं जो लीड कर रहे हैं ये मूवमेंट, ये हैशटैग्स. इट्स नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. एंड बीच में आई थिंक नयाब ने भी जो बात की थी, इट्स जस्ट दैट कि मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ. ये देखो मॉन्स्टर राक्षस, मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ. आई वुड नेवर डू दिस ऑन अ मोटरवे, बट मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, मैं अपनी बेटियों पे जुल्म करता हूँ, मैं सड़क पे औरतों को छेड़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ. It's very easy to otherize and monsterize. And maybe Tuba ने जिस तरह लेफ्ट की बात की, we should maybe do another podcast specifically on the left, because I do think class also plays a huge role even in this incident. It's easy to otherize and think of these people as monsters. So if all of you would want to say something just to conclude, and then we can call it a day. Tuba, as always. No, I'd love to have you again, Tuba, for a longer discussion on specifically class and gender. Thank you for having me. I have met Kurat, of course. Kurat ko main janti hu. Manal ko nahi milti. So it's been lovely to actually get to know women who are working in their own ways in different cities, because it's very, हम काम एक जैसा कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. So I think it's been lovely to been able to hear from others and to know that हम एक ही जगह होते हैं, बस घूम रहे होते हैं. एक ही बात कर रहे होते हैं, बस उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. कोई यहाँ से पकड़ लेता है, कोई वहां से पकड़ लेता है. But I think वही बात जो आपने की कि मसला एक किसी को लटकाने का नहीं होता. मसला उस नॉर्मलाइजेशन का है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है. जब मेरी माँ मुझे कहती है कि कमीज लंबी पहन लो या ऊपर दुपट्टा कर लो. आज सुबह मेरे साथ हुआ, बैंक जा रही थी तो उन्होंने कहा बेटा कमीज दूसरी पहन लो. तो मैंने कहा मामा मैं कमीज लंबी भी पहन लूंगी तो भी उन्होंने देखना है, मुझे जाने दे, मुझे काम करना है. सो आई थिंक ये हमारे घरों से जब तक हम ये सोच खत्म नहीं करेंगे कि औरत का होना, उसका होना ही थ्रेट है, उसके जिस्म का मौजूद होना ही थ्रेट है,
उस वक्त तक हम रेप कल्चर को, रेप को और इस तरह के बाकी पेट्रियार्कल वायलेंस की फॉर्म को खत्म नहीं कर सकते। हर चीज को हमें देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे घर में हो रही है, वो समाज में हो रही है, या वो रियासत की तरफ से हो रही है, और इन सब के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। एंड आई थिंक वही इस वक्त फेमिनिस्ट मूवमेंट कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है, बेटर देन एनी अदर मूवमेंट इन द कंट्री। सो सब साथियों को सलाम जो अपने अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं, और उनके काम का बहुत शुक्रिया। इस पे I just want to ask another question. I'm sorry I'm taking too much of your time, but this is too constructive. एक कहीं किसी की मैंने ये भी बात पढ़ी थी जो बहुत मुझे पॉइंटेंट लगी कि जब आप औरतों को पुलिस करते हैं ये कहकर कि तुम रात को बाहर ना जाओ, या तुम ऐसे कपड़े पहनो, या तुम ये करो, what you're saying is make sure he rapes the other woman. Yeah. कि आप अपनी and this is what organizing has taught me कि पहले मैं दुपट्टा लेके जाती थी, अब सर से उतार देती हूँ, क्योंकि वो मुझे भरोसा करते हैं, शायद ज्यादा वो मुझे समझते हैं कि मैं उनके, तो वो बाउंड्रीज, जिस तरह कुरत ने भी बात की कि बाउंड्रीज को थोड़ा थोड़ा करके पुश करना बहुत जरूरी होता है। एकदम से पुश कर देंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लोगों को पुश करना, उनको धक्के देना जरूरी होता है, और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर दे धक्का इकट्ठा भी, कोई मसला नहीं। और अगर कोई दे दे तो भी ठीक है, own that as well, it's part of the movement. हाँ, मतलब जैसे मेरी मर्जी दे दिया ना एकदम से, so I think that has its value, and then थोड़ा has its value too. It's strange that that's radical. मेरी मर्जी is a radical position in Pakistan. नहीं, क्या किसकी मर्जी होगी? Manal, go. I think what I just want to conclude on is the way forward, right? Okay, we have identified कि अच्छा ये issues हैं, इसकी वजह ये है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब आगे की क्या है? Like अब हम क्या कर सकते हैं अपने अपने spheres के अंदर? Which is why I was agreeing with what Nayab was saying कि भाई she feels कि you have to find a balance in your language or how you approach people who are obviously not on the same page as you. So so अपने अपने स्पेयर्स के अंदर काम करना, फॉर एग्जांपल अभी आई एम सजेस्टिंग कि सिंस आई एम अ टीचर एंड स्टफ, तो कंसेंट की क्लास अब आई एम डिजाइनिंग, राइट, कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपके प्रोग्राम्स के अंदर एक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एजेस यूनिवर्सिटी में 18 साल ऑनवर्ड्स हैं, और उससे पहले टेक्निकली तो हो जाना चाहिए, बट अगर आप कॉलेज भी आ रहे हैं 18 साल की उम्र में और तब भी ये एक टॉपिक है जो कि सिखाया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, तो क्या कहते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत मतलब डैमेज अंडू हो सकता है, बिकॉज आप मेच्योरिटी में आके अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, हम लोग कितने सारे हैं, आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे तो नहीं पता था रेप कल्चर के बारे में, मैंने भी बहुत सेक्सिस्ट और रेग्रेसिव एटीट्यूड सुने, देखे, बहुत सारी चीजें घर में हो रही थी, एलिटिस्ट चीजें जो कि मतलब, बट बड़े हुए तो थोड़ी समझ आई, तो समझ आया ना, अनलर्न हो गई वो चीजें, लेकिन वो उसके लिए भी एक आपको एफर्ट मतलब यू हैव टू मेक, एंड व्हेन यू आर इन प्लेसेस लाइक जहाँ कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या एजुकेशनल जहाँ पे भी जगह हैं, वहां पे तो ये कॉन्वर्जेशन डेफिनेटली होना बहुत जरूरी है कि भाई अब इसको अनलर्न कैसे किया जाए, अब ये सीख तो लिया है, और लीगल आपकी पॉलिसीज, आपका कोर्ट, आपका अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें बाद में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फाइनल एंड यही है कि अच्छा भाई अब चीज हो गई तो एटलीस्ट आपको जस्टिस तो मिले, लेकिन प्रिवेंटेटिव तरीका उसका भी आई फील लाइक अब ये है कि भाई आप अपने अपने स्फेयर्स के अंदर एजुकेट करना शुरू करें, अनलर्न करना शुरू करें ये बातें जो आपने सीखी हैं, सबसे जरूरी चीज ये है इन माय ओपिनियन, तो वर्किंग ऑन इट, आई नो सो मेनी अदर पीपल स्पेशली टुडे जो कि सब पैनल पे थे, इवन यू शहजाद, यू नो कितने सारे हैं जो कि अपने मतलब ये सारी एफर्ट चल रही है, बट आई फील लाइक I feel like अब ये जो है, sorry, I'm so distracted. My cat has suddenly woken up. I was like, whose baby is that? I thought that was I a don't have a child. baby in here. It's a cat. It's a The cat. cat I'm baby. sorry. हाँ, वो मैं distract हो गई. चुप हो जाओ, please, मुझे embarrass नहीं करो. But खैर, point of the story being, I will stop talking this is now. our BBC moment. The cat will come in camera, and then that clip will go viral. नहीं, so I will now stop talking and mute my mic and just end on this. कि I feel like I think unlearning the things that we've learned is very important. जी कुरत। मुझे तो लगता है कि जो इस माशरे में जिस चीज ने सबसे ज्यादा डेंट मारा है वो बोलना है, तो बोलने की जरूरत है, डिस्कोर्स जनरेट करने की जरूरत है,
और जिस तरह कॉमरेड तूफा ने कहा कि घर में जरूरत है कि हम घर में डिस्कशन को शुरू करें, और मेरे ख्याल में डिस्कशन शुरू हो चुकी है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि घर से लेके रियासती सतह पर हर जगह पे जरूरत है बार बार री इन्फोर्स करने की कि इज्जत नहीं, इंसान है औरत। तो किसी की माँ बहन बेटी के फ्रेमवर्क में ना देखें, एज ह्यूमन बींग्स हमें देखें। बार बार हमें री इन्फोर्स करने की जरूरत है कि हम जिंदा हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे बगैर ना इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा जा सकता है, ना ही कोई और सवाल जो है वो उठाया जा सकता है औरतों की पार्टिसिपेशन और उनकी नुमाइंदगी के बगैर, उनकी लीडरशिप के बगैर, आई वुड से। तो आई बिलीव के जो जो जहां जहां है और जो कि वुमेन राइट्स पे बिलीव रखता है, तो मेरे ख्याल है अपने अपनी कैपेसिटी में हम सबको बोलने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े शोर मचाने की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े लड़ने की जरूरत है, और अपनी जिद्दोजहद को इसी तरह आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। खामोशी जो है वो जमूत का नाम है, और जमूत के बाद मौत होती है, और मौत जो है वो सोच की भी होती है और आपकी जिद्दोजहद की भी होती है। तो मेरे ख्याल में हमें हरकत की जरूरत है। ये जो मूवमेंट है, जिस तरह कॉमरेड ने कहा कि दूसरी जितनी भी मूवमेंट्स है उससे ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा कामयाब तरीन मूवमेंट है, तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इस मूवमेंट को दूसरी जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि अकेले औरत का सवाल ब्रैकेट में रह के नहीं उठाया जा सकता, जबकि जिस तरह आपने कहा क्लास क्वेश्चन ना उठाया जाए, इसी तरह कौम का सवाल ना उठाया जाए। तो ये सारी मूवमेंट्स जो है उनको आपस में मिलने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि आप जो भी मशवरे देते हैं, हमें समझ में आता है कि उन मशवरों के पीछे क्या है, तो आप हमें अपना काम करने दें, और आप जो करना चाहते हैं उस हम पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो आप करना पाए। लड़कों, इनको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है। प्लान बदलने की जरूरत पड़ गई है। कसौली की ट्रेन हम तो 8 करनी बजे है आपको मर्द लूटेंगे। मार्च तो कर लीजिए, करनी है आपको मर्द मार्च तो कर लीजिए। आपको पता है ना, मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी मर्द मार्च, ये आपको पता वो है। तो आप जरा ऑफलाइन आए तो आपसे पूछें। फॉर पीपल हु आप भी डोंट जो है नो, ना, आपने ये जो पॉडकास्ट कर ली, आपको भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, आप सुन लीजिए। मैं इसलिए था कि जब वो फायरिंग लाइन लगेगी तो आई विल बी द लास्ट वन शॉट। मैं तो इस उम्मीद में था, जिस तरह अमेरिका में सियाफाम लोगों की जो मूवमेंट है ब्लैक लाइव्स मैटर, उसमें कहते हैं कि शुक्र करो हम जस्टिस मांग रहे हैं, बदला नहीं मांग रहे। तो उसी तरह मर्द जो मेरे जैसे हैं, जो छोटी छोटी बातों से उनकी फट जाती है, शुक्र करें, जस्टिस और इक्वालिटी मांग रहे हैं। ये कोई रेडिकल मूवमेंट नहीं है कि हमें इंसान समझो। अगर इससे ही आप लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और खौफजदा हो जाते हैं, नहीं ये क्या मतलब है, औरतें अब अपने आप को इंसान समझेंगी, तो डरे दूसरा ये कि सीसीपीओ साहब ने तो कहा ना, अपना ख्याल खुद रखें, अपनी हिफाजत करें। तो मेरे ख्याल में वो तो अनारकी का पैगाम दे रहे हैं, जो हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जी आप कह रहे हैं, इसके बावजूद हम कहेंगे कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो अगर उन्होंने कोई खुल्ला जो है औरतों को अनारकी का पैगाम दिया है कि जी आप अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि रियासत नाअहल है, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जी, हम रियासत को पाबंद बनाएंगे कि वो अपना काम कर सके जो उसका करना है। सो अगर दिस इज द लेवल ऑफ आवर मूवमेंट के चाहे हमें कितना भी उकसाया जाए, हम वही करते रहेंगे जो हमें समझ में आता है कि हमारी सियासी बुनियादों पर और उसूलों पे सही चलता है। अगर पाकिस्तान के आजकल के हालात को एक इंसान के मुजस्मे में डाल दिया जाए तो वो सीसीपीओ उमर शेख होंगे। उनको समझने के लिए आप पेट्रियार्की भी समझ में आ जाएगी, पेट्रियार्की का स्टेट से कंट्रोल भी समझ में आ जाएगा, उनको किसने लगाया है वो भी समझ में आ जाएगा, मुल्क कौन चलाते हैं और किस वजह से वो हटाए नहीं जा सकते। और आपको समझने पूरा वालों के लिए बड़ी मुआशरा समझ में निशानियां आ हैं। जाएगा, आप इस एक इंसान को समझ लीजिए। वो अगर कहते हैं थैंक ना, यू सो मच। समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं अगर समझें तो इस तरह इस किस्म की निशानियां जो हैं वो हर साल एक आइटम तो जरूर आता है। मतलब ये तो एक सालाना वो है ना ट्रेंड, और उसके ऊपर हम सब लोग शुरू हो जाते हैं। कभी वो खलील रहमान होते हैं, कभी वो सीसीपीओ होते हैं, कभी निसार जस्टिस निसार होते हैं, कभी जो ओरिया हमारे मकबूल माशरा होते से। हैं। ओरिया तो ओजी है, लाइफ वो तो टाइम सीजनल अचीवमेंट। नहीं है ना, वो तो मतलब पेड पे है, पेड लेबर है ना आई थिंक उनका। आप लोगों को वो तो हर साल एक सीजनल। अवार्ड शो करना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छा आइडिया वैसे। मेल एलाइज ऑफ मिसोजिनिस्ट ऑफ द ईयर, चूतिया मिसोजिनिस्ट ऑफ द ऑफ द ईयर। ईयर। एक आई थिंक फ्रांस में जब किसी पुलिस ने कहा था एक औरत के बारे में कि जी डोंट ड्रेस लाइक अ स्लट, तो उन्होंने एक स्लट वॉक की थी जस्ट टू गिव अ बिग फक यू। सो आई डू थिंक मोटरवे पे 12:30 बजे एक रैली होनी चाहिए एज अ बिग फक यू टू द सीसीपीओ। एंड yeah, it's just tragic that the fights people have to fight, just something as simple as we're human beings, we're equal। इंसान समझे हमें भी।
2020 में that should not be a radical position to take. Thank you everybody for listening and thank you everybody for coming. It honestly was so constructive. इस तरह की गुफ्तगू अगर और हों और इंशाल्लाह नेशनल टीवी पर भी हों तो बेहतरी आएगी. डरे मत, समझें, सुने और अपने आप को बेहतर करें. Thank you so much for listening and thank you everybody for joining. Take care. Bye bye. Thank you very much.